was circulating the messages, Natasha. Everybody in my circle was like, we are not that kind of people. Why are you sending us those kind of messages? So yeah, I can understand the mental or emotional hurdle that you are facing. Here, as I said, action में हो चुका है. The separation is done. It's just a matter of legally getting it finalized. But I think in our culture also, the term divorce has इतना negative connotation कि even when I was going through this separation time, किसी ने भी नहीं कहा कि भाई separate हो जाओ. Everybody tries to, get the couple together and all of that, irrespective of how toxic the relationship is or what the scenario has been. So it's a cultural thing कि नहीं, मरते दम तक साथ रहना ही है, भले फिर कितना भी toxic क्यों ना हो. So maybe because of that, this terminology is quite scary. And yeah, it has a very negative sort of impact on most people. Thank you, Namita. Thanks for that very open and candid talk. And thank you everyone for joining. So today's topic is divorce, a controversial issue. And there's a question mark and the exclamation mark. So basically, what I was trying to say is it a controversial issue or is it not? Is it like obvious? But we make it controversial. In what sense is it controversial? Because when I Googled the term divorce a controversial issue, believe me, not a single search result came up. Related searches came up, but not a single not a single search result. So I thought let's define the terms. I usually do that in my teaching job, which I do otherwise. So divorce, by divorce, I think it's fairly obvious. Oxford English Dictionary defines it as the legal dissolution of a marriage by a court or any other competent body. The other meanings are, of the word divorce are to separate something from something else, typically with an undesirable or unhappy effect. So what do you think, people? Is divorce a controversial situation or a decision, or it isn't? Would you like to give your opinion about that? Who would like to go first? Or so has anyone experienced divorce? Does anyone regret it? Does anyone feel that they would have probably hi, Mohit wants to talk. Yes, Mohit. Yes, so I don't know about the controversy, but there's this one thing with the divorce that one person is always suffering and the other person is trying to get most out of it. So uh, if we talk about divorce, anyone who hear about a couple is getting divorced, nowadays I think it's a very common term because everyone is like 90% of people are getting divorced at the age of 40, 45. Something or the other thing happens and it does that. So कंट्रोवर्सी कोई नहीं है क्योंकि जिसको जो करना है वो करेगा, जो दूसरा इंसान है वो उसको मरना है वो मरेगा. बट ये बड़ा कॉमन टर्म हो गया आज की डेट में एंड मेनी पीपल आर अवॉइडिंग गेटिंग मैरिड just because they are seeing a lot of unhappy marriages and divorces in their this age. So then therein lies the controversy, no? Basically, in the sense, शादी करनी चाहिए या नहीं, that's a different controversy. Controversy is basically a disagreement about something or a lot of opposite-sided arguments about something, right? So शादी करनी चाहिए या नहीं, ये तो एक controversy है, पर is everyone good with Hindi? I suppose once you enter into the matrimony, whether or not to get divorced, where exactly do you draw the line? Ki bas, this is enough. That also
is a contentious issue or a difficult decision to make, and I suppose there's so much of societal pressure, and the religions scream sin, sin, and a lot of other issues, no, that are involved in making up that decision. It's a emotional turmoil, legal hassle, and yeah, what you say is correct, Mohit. Like everybody, once the decision to separate is made, then one person or the everybody wants. It's like a free for all blame game, and that is what happens. What you're describing somewhat reminds me of that. Anyone else would like to talk, please, or would you like to say something about this, Mohit? I think that's it. मैं तो अभी आज ही एक्सपीरियंस करके आया हूँ. मेरी कोर्ट डेट थी तो I'm in a different state of mind. And what happened? 60 लाख रुपया मांगा मैडम ने मेरा घर तोड़ने का. I'm बच्चे मेरे sorry, but पास I हैं. can't hear you, Mohit. Can everyone Okay. else hear him clearly? She asked for 60 lakh rupees Yeah, he's clear. for breaking my house, my kid's heart, my heart. Kids are with me, and she wants to live with that person. And last month, I had a word with her. She was like, I'm not sure and all, but her advocate is have set up a 30% commission. तो जब भी she thinks about something positive या बच्चों के लिए सोचने का कुछ होता है, तो her advocate gives her advice and she follows that. So stupidity में सब कुछ खत्म हो गया. But things were going in a positive direction for you, na, Mohit? What happened? we tried, and she was like, I'm not sure and all, but the next day she denied each and everything she said. She said कि तुम अपने आप ही कुछ सोच लेते हो, ये है वो है. A WhatsApp channel was made to, for the family discussion. बच्चों से कभी भी बात कर सकते हो and all that. So she calls up in the वीडियो कॉल होता था बच्चों के साथ. बच्चे वहां पे उस टाइम पे तो खुश रहते थे. 10-15 मिनट जो कॉल हुई उसके बाद they were crying in their bed. और मेरे को वो सब संभालना पड़ रहा था उनको. और they were also hoping कि शायद मम्मा वापस आ जाएंगी. ये उनके मन में था कि मम्मा अगर बात कर रही हैं, एटलीस्ट बात शुरू हुई है, तो she will come back. But then Kavya, my daughter, asked her, are you coming back? She said, beta, I cannot come back, or I can only come and meet you once in 2 months. So my daughter, she replied कि मुझे पिकनिक मम्मा नहीं चाहिए जो पिकनिक बनाने आए मेरे साथ. If I want to hug you, I should hug you anytime I want. So अगर वो हमारी फैमिली पूरी इसी तरह से नहीं बनती है, तो हमें आप नहीं चाहिए, हमें मम्मी नहीं चाहिए. So उसके बाद उसने 2-3 बार वीडियो कॉल करी. मैंने बच्चों को बोला भी कि बेटा उठा के बात कर लो. And they said कि नहीं, हमें they used the curse word and said कि हमें उससे बात नहीं करनी है. So after that, I've also stopped, telling my kids to talk to her or not. So आज भी उनका आना था, उन्होंने, she did not come again. Like 5 केस डाल रखे हैं, but they are not coming and all in the cases. तो आज भी उसका वकील जो था वो सारी बातें उल्टी सीधी सारी जो कर रहा था. तो I told my story कि ये story है and all that. तो next month फिर से डेट है. She might come or not. तो सब खत्म है. अब I'm completely sure कि कुछ नहीं होने वाला. मेरा जो सेटअप था वो ये था कि चलो एटलीस्ट बच्चों के साथ बात हो जाए. मेरे को तो लाइफ में वो नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे को धोखा मिला है, तो मैं दोबारा से तो विश्वास करूंगा नहीं. मेरे को नहीं चाहिए. बट एटलीस्ट बच्चे अपनी माँ की रिस्पेक्ट करें. उनका जो एक्सेस है, बिकॉज बायोलॉजिकल मदर इज बायोलॉजिकल मदर, नोबडी कैन रिप्लेस दैट. तो मेरे को था कि चलो बच्चों के साथ अगर उसका सेट हो जाता है, बच्चे खुश हैं, उसको भी अगर कुछ हेल्प मिलती है अपना डिसीजंस लेने में, या वो भी ठीक रहती है, तो इट्स ओके विद मी. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर बच्चे ही परेशान हो रहे हैं उससे बात करने के बाद, एंड दे हैव एक्सपेक्टेशन व्हिच आर नॉट बीइंग मेट, सो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू कि उनको हर रोज का ट्रॉमा मिले. रोज रात को वो रोते हैं, रोज रात को मैं उनको गले लगा के चुप कराता हूँ. We don't want that in our life. So all of us, like all 3 of us, sat together, we discussed, and we decided that she's dead to us and we should be dead to her. No more discussions, no more talking about her in the house. How old are your kids?
My daughter is 10 and my son is 12, but mentally, I guess they are teenagers. Yeah, that happens to kids when they go through stress. They mature faster. Good for them, but Yeah, so it's their decision. मैं आज भी मना नहीं किया. मैं आज भी उनको यही कहता हूँ कि बेटा जब भी मन करे तुम अपना तुम्हारे पास फोन है अपना कॉल करो और बात करो कोई चक्कर नहीं है. I will never stop you that. But they don't want to, so that's their decision. I will never interfere in that. thank you, Mohit. Thank you Sure, for you're welcome. sharing. So basically, I thought we'll have a discussion about this issue, divorce being controversial, because everybody, whenever they come to this decision of divorce, I think many people are just toying with the idea कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए, डिवोर्स लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए. Like Natasha said, it's a huge word to deal with, it's a big mental hurdle. And that's right, because it's not necessary. Sometimes, the solution is worse than the problem with all the legal hassles, emotional roller coasters, and no support from anywhere, because sort of no family wants to support, or society doesn't support the decision of divorce easily. So I was thinking whether we can, have a sharing of if any one of you had this back and forth or difficulty in deciding, and what was the process in which was like you went through the struggle, if you would like to share before you came to this decision. Okay, I can hear something. So basically, divorce or separation decision का तो हम बाद में बात करते हैं. Let's say जब आप separate हो जाते हो, then what happens? Lot of your common friends they take sides, I guess, and some are not interested in getting into that thing, and they just disappear. Society का अगर देखा जाए तो it's hard to walk around freely. तो आप पहले जिस तरह से आप मजाक करते थे दोस्तों के साथ या दोस्तों की वाइफ्स के साथ, उनके साथ आपका एक बहन भाई का रिश्ता होता था, आप किसी भी तरह से बात कर लेते थे, जो भी करते थे. यू हैव टू स्टॉप ऑल दैट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ वो क्या सोचेंगे आज की डेट में. जस्ट बीइंग सिंगल और सेपरेटेड, एवरीबडी हैज दिस नोशन के दूसरे बंदे का क्या है. फॉर गर्ल्स, what I have noticed with talking with all my friends who are single parents and all, उनको ये प्रॉब्लम आती है कि if girls are being a little free, other people starts thinking that they are available. तो वो पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाती है. सो लाइफ तो बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, और जो भी आपको देखता है वो एक अलग नजरिए से देखता है. कोई सिंपैथी है, एम्पैथी है, गुस्सा है. सम जो थोड़ा मॉडर्न नहीं है, दे थिंक दैट ओके इनसे तो घर ही नहीं संभला अपना. तो उस तरह की चीजें भी आपको सुननी पड़ती हैं. तो these things happen. लेकिन जो डिवोर्स का डिसीजन होता है, आई गेस मेरे केस में तो जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे धोखा मिला है और दूसरा इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एंड दे स्टार्टेड हर्टिंग यू, or then just stand in front of a mirror and ask yourself that what exactly you want in your life, and then your heart speaks out. तो मेरे दिल ने तो यही बोला कि ऐसे इंसान के साथ तुम दोबारा मतलब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे. So that was like after 2 or 3 months of my separation, I came to this conclusion कि मेरे को अब जिंदगी में वो तो नहीं चाहिए किसी भी हालत में. So that was the decision when I decided कि नहीं मेरे को I'm gonna file for divorce. Yeah, for a huge amount. That was also one reason.
कि अब मेरे ऊपर अब बहुत ज्यादा केसेस आएंगे, उल्टे सीधे एलिगेशंस आएंगे, तो उससे बचने के लिए जो भी है इट्स द राइट स्टेप, क्योंकि मेरे को रहना ही नहीं है। सो आई शुड फाइल द डिवोर्स फर्स्ट। और उसके बाद वही हुआ, उसने 5 केस डाले, उल्टे सीधे सब झूठ, एक एक चीज उसमें झूठ है। एंड बट वही था कि अगर मैंने पहले केस डाल दिए तो दे आर ऑल काउंटर ब्लास्ट, सो उनका कोई स्टैंड नहीं होता है कोर्ट में। सो आपके ऊपर डिवोर्स थोपा गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं, डिवोर्स पहले मैंने फाइल किया था। वी हैड अ मीटिंग आफ्टर लाइक 15-20 days म्यूचुअल, तो उसमें शी आस्क्ड फॉर 2.5 करोड़ रुपीस। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, उसको भी पता है कि मेरे पास 2.5 करोड़ रुपए नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट रीजन व्हाई शी आस्क्ड फॉर 2.5 करोड़ रुपीस। तो फिर आई डिस्कस्ड दिस विद माय लॉयर कि 2.5 करोड़ मांग रही है। तो मेरी लॉयर ने मेरे को बोला कि बेटा अब तेरे ऊपर ना सारा उल्टे सीधे केसेस आएंगे, तो तू मुझे ये बता कि तेरे को उसको वापस लेके आना है, तेरे को उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। तो मैं आई वाज लाइक कि मेरे को नहीं रहना है, क्योंकि मेरे को झूठ से सख्त नफरत है। मैं झूठ ना बोल सकता हूँ ना मैं सुनता हूँ। मैं एक बार उसने झूठ बोल दिया तो आगे जिंदगी में मैं कभी विश्वास नहीं कर पाऊंगा, और मैं डेली उस ट्रॉमा से नहीं निकलना चाहता कि वो कहीं पे गई है, मैं पीछे से सोचूं कि पता नहीं यार अब कहाँ है क्या है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सिचुएशन। तो मेरे को डिवोर्स चाहिए। सो फिर मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया। देन हमारा एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें मैंने उसको बोला कि आई वाज पेइंग हर 35,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन उसमें यही बात हुई थी कि हमने जो मैंने केस डाला है हम इसी पे डिस्कशन करेंगे और इसी पे फाइनलाइज करेंगे जो भी करना है। बट उसके वकील का कुछ और प्लान था। उन्होंने फिर डीवी एक्ट, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज और ऑल दैट मेरे डैड पे, मेरे भाई पे, वही जो एक परफॉर्मा होता है उनका, उस तरह से पूरे 5-7 केस उन्होंने डाल दिए। आई थिंक इतना पैसा लग चुका है कि मेरे दोनों बच्चों की ग्रेजुएशन में करवा सकता था बड़े आराम से। Thank you, Mohit. Nirmal, what do you think? You also had So Mohit, someone who slapped the divorce so on you, Mohit, right? I wanted to ask, मतलब ये टोटल कितना टाइम हो गया आपको सेपरेशंस के बाद एंड दिस लीगल केसेस? यार जून 2023 में वो उसने मेरा लॉकर और वो सारा एक्सेस करके सब पैसे वैसे लेके वो चली गई थी अपनी मम्मी घर पे। सब जून 2023 के बाद आई हैवंट आई हैव सीन हर लाइक ट्वाइस। वो सेपरेशन तब से चल रहा। Okay. So, Nirmal, I had a question, and this is by the by, like, in the sense that if the kids are with Mohit, then on what basis is she asking for money, and on what basis is Mohit paying? So मैम, if I tell you, the laws are very much gender biased. आप कुछ भी कर लो, मतलब the females can always drag you in the cases and उसको वो लंबा खींच खींच के रबर की तरह they would drag some money from you. So laws तो ऐसे ही हैं। हाँ, but benefit मोहित you have is कि you have at least your kids and अगर वो ड्रैग कर रही है तो you also drag it. तो मेरे केस में थोड़ा अलग है। माय एक्स जो है वो शी फेल इन लव विद सम गर्ल। सो ये Okay. सेम सेक्स वाला सीन है। सो ड्रैग, देखो ड्रैग में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज आई नो कि जब तक मेरे बच्चे सेट नहीं हो जाते या कुछ ऐसा है कि मेरे को कोई जल्दी नहीं है डिवोर्स की, बट उसको है। बिकॉज दैट गर्ल इज सेइंग कि जब तक मोहित से डिवोर्स नहीं होता हम लोग का रिश्ता आगे नहीं जा सकता। सो शी इज आफ्टर दैट कि मेरे को पैसे भी फटाफट मिल जाए और डिवोर्स भी जल्दी हो जाए। सो आज भी मैंने कोर्ट में जज को एक ही बात बोली है कि सर मैंने 1 रुपया नहीं देना जब तक मैं अपना घर, अपना लोन फ्री नहीं कर लेता, अपने बच्चों की एजुकेशन सिक्योर नहीं कर लेता, उनका बिजनेस सिक्योर नहीं कर लेता, उनकी शादियां सिक्योर नहीं कर लेता। मैं किसी थर्ड पर्सन को 1 रुपया नहीं दूंगा। आप मुझे 10 बार बुला लो, आप मुझे 20 साल तक बुलाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उनको तो यही मैसेज है कि, और मैंने देना भी नहीं है। आई डोंट माइंड ड्रैगिंग इट, जितना मर्जी चलता रहे। बस मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं उनको मैं ऐसे ही छोड़ नहीं सकता किसी भी हालत में। And how long was the marriage? 17 years, and it was a beautiful one. I never deny that. It's a very, very big. So, After January Nirmal also 2023, had. yeah, sorry. Excuse me? So मेरी भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है, but my marriage was very small, so it was hardly 6 months, and उसके बाद 1 year of fights, then
It's been 2.5 years. I'm fighting that legal battle, but I'm not giving any single penny to her because legally she is more qualified than me, and we don't have any case. या मेरे केस में तो शी इज वर्किंग, So, सो आई एम गोना आस्क हर कि मेरी जॉब नहीं है, नवंबर में हाँ, मेरी जॉब चली गई, तो आई एम गोना आस्क हर कि अगर so आपको बच्चों से मिलना है जो भी है तो आप 70% अगर बच्चों से मिलना है तो 70% पे करो उनका खर्चा, अगर आपको बात करनी है तो 50% करो, मैं ऐसी कुछ टर्म्स रखूंगा, और नहीं तो आप दोनों बच्चों को ले जाओ, हाँ, पालो अपने आप, जैसे करना करो, आई डोंट नो। बच्चे तो हैं वो जाना ही नहीं चाहते हैं, सो दैट्स अगेन वन पॉजिटिव पॉइंट फॉर मी विद मी। बट डू यू हैव किड्स नहीं, आप नेवर? जितना भी मतलब बोल देना, मोरली आप जितना भी कर लो, लीगली आप जितना भी कर लो ना, द लॉ एंड द लॉयर्स आर सो मच, देश की वो उसको खींचते खींचते ले जाएंगे 3 4 5 साल मिनिमम। आई एम रेडी फॉर 20 सो years, थोड़ा सा डोंट वरी। पेशेंस चाहिए बिकॉज 2023 अभी तो आप बहुत रिसेंटली मतलब लीगल बट फाइट आई में एम एंटर किए हो। आई एम रेडी टू फाइट इट फॉर 20 years। मैं मॉरल्स हम्म, मेरे बहुत उनके खिलाफ नहीं जाऊंगा, मेरी गलती नहीं है तो मैं करके आने दूंगा। हाँ, यस, आपके बच्चे हैं? नो नो नो, बट वही ओके। है व्हेन यू कैन सेंस दैट कि ये जो भी है ये ऑल द क्या बोलते हैं एक्सटॉर्शन है, ये मनी के लिए ही होगा, ठीक है। Nobody हाँ, wants divorce. Nobody. मतलब So, this system is all about money. are we past the days of bride burning and people burning themselves because of the in-laws harassment? Are we past that? अभी And because no, it's opposite. You from can your say talk, the it males seems are more like suffering. हाँ, the males are more suffering. I would like to hear from the उल्टा. girls in the group, please. Yeah, Where hi, ma'am. Sorry. So, yeah, please, Natasha, you go on. No, it's okay. You carry on. You carry on. Can you please put your hands up so then we can call you one by one? Okay, so I'll go first then. मैम मतलब इस चीज पे तो मेरा तो एमिकेबल ही हुआ था, लास्ट ईयर ही है। बट या मतलब ऐसा कुछ नहीं था। आई हैड वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप विद ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, बट हमारी आपस में ही नहीं बनी। एंड एनीवेज, सो जो इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, और मुझे लगता है हमारी सोशल लाइफ बहुत खत्म हो जाती है समवेयर। एक बाइस तो है इंडियन सोसाइटी में स्पेसिफिकली, और अब जैसे फैमिली फंक्शंस हैं, मैरिजेस हैं, वहाँ आपको एक अलग तरीके से देखा जाता है, एंड दे वांट कि कुछ ऑस्पिशियस हो रहा है तो आपको थोड़ा दूर ही रखें। तो आई तो हैव स्टार्टेड अवॉइडिंग दीज काइंड ऑफ फैमिली फंक्शंस ऑल टुगेदर। तो सोशल लाइफ में बहुत फर्क पड़ रहा है, एंड एक बार आप ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर जाते हैं तो फिर आपका जो है नजरिया, और ना आप यू स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल की दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है सॉर्ट ऑफ थिंग। और क्योंकि आप थोड़े सेल्फ रिस्पेक्टिंग होते हैं तो आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको इवन इफ दे मीन वेल, तो एम्पैथी, वो सिंपैथी उनकी नजरों में दिखना। सो डिस्कस भी नहीं करती हूँ मैं तो सबसे, अनलेस somebody इज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड स्टफ। तो कुछ फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव भी है। मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है, मैं बात कम करना पसंद करती हूँ अगर इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल इन माय लाइफ, एंड मैं दूसरों के लिए ज्यादा खड़ी रहती हूँ और अपने अपने तक ही रखती हूँ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन। तो हाँ, सोशल लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, एंड ट्रॉमा है उसके साथ, इसीलिए मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, बिकॉज आई डिड नॉट डिस्कस इट। तो मैंने वो प्रोसेस ही नहीं किया इमोशन। सो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस इट इन अ प्रॉपर मैनर, और सब वो जब तक आप उस दर्द से निकले नहीं है, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि what the other person is going through. So it's better to be a part of a support group. I mean, one-to-one psychologist भी आपको कितना ही समझा लेंगे, जब तक आप उस दुख से नहीं गुजरे हैं, आप दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते। तो इट वाज एमिकेबल बिकॉज मैंने तो ज्यादा कुछ मांगा ही नहीं। आई जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट थिंग, कि मैं अब इस उम्र में मैं बार बार चक्कर लगाना, बिकॉज मेरी इमोशनल हेल्थ भी अफेक्ट हो रही थी, एंड फिर बार बार ऑफिस से छुट्टी लेना, ये सब मुझे सूट नहीं करता। बहुत कम में ही सब हो गया, जबकि ही इज अर्निंग वेरी वेरी वेल, ही इज इन आउटसाइड इंडिया। तो मैंने पहले मेंटेनेंस का ही डाला था, बिकॉज आई वाज नॉट प्लानिंग टू सेपरेट, बट समहाउ थिंग्स डिडंट वर्क आउट। फिर हमें ये था कि वो आ ही नहीं रहा था डेट्स पे, तो वो जाए आ ही ना और लटकाता रहे। सो वी वांटेड टू एंड इट वंस फॉर ऑल, और बहुत कम में मतलब he paid me next to nothing. He said it's your decision, so you don't want to go ahead. And my thing was कि हम इसके साथ रह के भी मतलब ऐसे है कि साथ रह के भी अकेला रहने से अकेला रहना बेटर है। So that's how it was.
Yeah, I agree with you saying, कि जब तक आप उससे ना गुजरो तब तक वो समझना मुश्किल है. मतलब you can only share with people who have gone through it. I remember the first time I thought of divorce and I went to this lawyer. She was like completely decked up and in a very posh kind of office. And I was going through like the real low of my life. And इतना कि मुझे ना रास्ते पे चलने में भी मुश्किल लगती थी. And I went to her, and the first thing she said, "Oh, you've come for, you're thinking, you've been referred by so and so for divorce. Okay. There are marriages and then there are marriages, and some of them work and some of them don't work." I was like, "What?" I mean, and I said, "Okay." And I said, "Thank you." या And I just मैम left from मतलब there. कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिनमें आप ना एक्सपेक्ट करते हो, बट नाउ दे हैव मेड इट अ मनी मेकिंग थिंग. यू वोंट बिलीव, वो पहले ही मैंने ना के बराबर, मतलब नेक्स्ट टू नथिंग, मेरे लीगल एक्सपेंसेस भी उसमें से शायद नहीं निकलते उतना, तो वो मुझे दे रहा था. उसमें से भी माय एडवाइजर वाज लाइक कि आई नीड माय कट. आप तो वैसे भी कम में मान गए हो, तो ठीक है, आपको क्या फर्क पड़ता है 10-20 हजार और कम, मतलब दे आर दैट शिटी. तो वो तो आई नो दैट थिंग. तो मैं तो उस चीज के लिए, एंड ही वांटेड मी टू ड्रैग इट डाउन सो दैट ही कुड मेक हिज मनी, बट आई वांटेड टू एंड इट वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली ड्रैग हो बार बार. इज द थिंग. It's a Thank business for you. them, for sure. Anyone And else? if I Natasha? share from my Yeah, experience, please, just Anamika. so in my case it was a mutual divorce, तो कभी कोई दिक्कत हुई नहीं. Although दिक्कतें तो बहुत सारी थी, but the basic point was that I just wanted to get out of the situation. तो सबसे funny चीज मुझे, when I was visiting the divorce lawyers, and there was this lady I visited to get some documents prepared. So my ex-husband had to pay me a lot of money. He used up a lot of money that I had saved over more than a decade and all that. तो and my mom's as well. तो मैंने अपना तो सब छोड़ दिया, but मेरी mom का एक document prepare करवाया that whenever he has money in future, so he needs to pay my mom back, right, for whatever she has given to him. ठीक है, बढ़िया. अभी हम गए एक लॉयर के पास. She must have been a 51-year-old lady, and she has handled tons of divorce cases. मैं भी गई, मेरा एक्स हस्बैंड भी गया, हम दोनों साथ में ही गए थे. वन ऑफ माय फ्रेंड केम अलोंग, हम गए थे. और मुझे वहां पे उस लेडी को देख के, शी वाज ओल्ड इनफ, शी हैड सीन सो मेनी केसेस एंड ऑल दैट. और मुझे थोड़ी देर के लिए ये फील हुआ कि जैसे वो मुझे ही जज कर रही हैं, जैसे कि हमें, मतलब कि हम कोई बहुत ही मतलब ऐसे बेकार लोग हैं जो हमने ना डिवोर्स हो गया हमारा, पता नहीं हम मतलब पता नहीं हम गधे हैं, बेवकूफ हैं, हम कैरेक्टरलेस हैं, पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं. It was kind of shocking for me because as a person that year old, I was expecting, and she has not been through a divorce, she is in a marriage, but थोड़ी देर के लिए it was kind of, yeah, I felt such a lack of empathy. But हाँ, by God's grace, the lawyer's side of things, मतलब एक friend का friend था, he's a lawyer, he handles divorce cases and all that. So by God's grace, I got his help. He supported me a lot on the journey, और सब कुछ बहुत ही smoothly हो गया. Like 6 months का जो period होता है, वो 6 months में ही I had the paper in my hand. ठीक है, बहुत बढ़िया. And but through him, I got to know a lot about this space की actually किस टाइप के स्ट्रगल से पीपल गो थ्रू. एंड ही वाज टेलिंग मी द सेम थिंग कि आपका तो सब बिल्कुल आसानी से हो गया क्योंकि म्यूचुअल था, तो कुछ वो नहीं था, आपको भी कुछ नहीं चाहिए, उसको भी नहीं, सबको छुट्टी चाहिए, तो ठीक है. बट through him I got to know कि what kind of actual struggles people go through, and then after speaking to people around, and of course like you guys are sharing. So, yeah, that's all I wanted to share, Ashwani. Yeah, thank you, Anamika. Thank you for sharing that. Yeah, and I forgot to add, like, that emotional impact of, sort of being looked up and down and judged, and, some marriages work out and some marriages don't. And she was very obviously married, probably successfully. So, yeah, I agree.
बट इसका uh, डिवोर्स, सीइंग डिवोर्स एज अ कंट्रोवर्सी में मैंने एक चीज और देखी, दैट माय मदर फील्स रियली ashamed of it. My ex-husband's family feels really ashamed of it, so much ashamed that they have yet not shared it with people around, and they have asked us also not to share it with anybody, that we are still divorced. So उनके अकॉर्डिंग तो उनके दिमाग में और बाकी दुनिया के दिमाग में the image that they are projecting is that we are still married, and it's been like a really long time since we have gotten divorced. But वही चीज is still living in that hope that कैसे भी magically कुछ हो जाए ताकि हमें वो shame ना feel करना पड़े. तो हम तो उससे निकल गए, but the family is going through a different trauma कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे. ये my mom visits temple every time and she comes home and tells me कि पता है मंदिर में ना जिसका भी डिवोर्स हो जाता है वहां पे उन सब लोग उनको बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं. इसके लिए मैं किसी को नहीं बताना चाहती that this is how it is, you know. So I was like, तुम्हारी इच्छा, I leave it on you. It's your place. You go there every day, so I am nobody to interfere whether you want to tell them or not. It's your choice. But I feel really sad कि temple जैसी जगह पे where people go to support each other, empathize with each other, share their love with each other, वहां पे वो उन लोगों की ये कॉन्वर्जेशन होती है कि देखो देखो इसका डिवोर्स हो गया, देखो देखो इसका ये हो गया. सो आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट in such places it's definitely a controversy and a taboo. But yeah, भी क्या कर सकते हैं. yeah. Yeah, one of the reasons. Anamika, sorry Ashwini. Anamika, I will like to help you here. ये ना कुछ नॉर्मल, अगर जैसे मंदिरों में जैसे कीर्तन के लिए जो स्मॉल पार्टीज वगैरह है ना, मे बी थिंग्स हैपन देयर, बट आई वुड से कि इसको ना आप एक नॉर्म मत लेके चलना. एंड इस वक्त में आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा जाओगे ना. एंड इफ यू फाइंड सम गुड कोचेस, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू गेट ओवर एक जो नेगेटिव इमेज हमारी अपनी तरफ से बन जाती है. दे विल गेट यू इनटू सेल्फ लव एंड एवरीथिंग. आप फेसबुक पे देखो, यहाँ मतलब आप यहाँ पर भी इवन अनामीफाई इज हेल्पिंग इट, राइट. तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज को ओवरकम करने में. देयर आर लॉट ऑफ गुड वीडियोस एंड यू कैन रेफर टू देम. तो हाँ, आपकी मदर को आप चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने लिए हमेशा इस चीज को पकड़ के रखना. इट विल हेल्प यू गेट ओवर मैनी ट्रबल्स इन योर लाइफ. That was my personal this thing, because I am also taking help. तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं. Yeah, thank you for that very sage advice, Anamika. I doubt if Anamika needs it now. I'm sure she appreciates it though. I'm sorry, I'm speaking on your behalf, Anamika, because I know you are a very kind-hearted. No, that's very Yeah. kind of you, Namita, to say that. Thank you. Yeah, you can go ahead, Ashwini. Sonam has a hand up. Yeah. I would like to share. Actually, the thing is, like, even for me, it was a very short span. I just stayed for 3 months with the guy, but it took me 3 years to come to the decision that I like don't want him now. For 3 years, I kept on trying, and like my father was like, कि it's not working, just leave it, those are not good people. But मुझे ना ये समझने में बहुत टाइम लग गया. मुझे ये 3 साल लग गए समझने में कि एक्चुअली शायद ना मैं 2 चीज थी. शायद मैं अकेले नहीं रहना चाहती थी, और दूसरा चीज ये भी थी कि ये जो टैबू है, मैं शायद आई वॉज नॉट रेडी टू फेस कि ये टैग मुझे नहीं चाहिए था कि नाउ लाइक शी इज डिवोर्सी एंड ऑल. तो मैं ये सारी चीजों से डर के आई थॉट कि ना मैं लाइक दिस, मैंने शायद एक पॉइंट के लिए ये भी सोचा था कि दिस मे बी this known devil is better than some unknown devil. So that's how it was. So after 3 years, he only filed first for divorce, and then what happened is मतलब उसके बाद में मतलब मैंने कुछ केस फाइल किए, क्योंकि वो डिवोर्स में जो भी लिखा था सारा सब कुछ झूठ लिखा था. लाइक उसमें एक भी लाइन सच नहीं थी.
तो उसके बाद वो स्टार्ट हुआ तो हाउ इट इज लाइक जब ये सारा होने लगा तो सोसाइटी में एंड ऑल it's very difficult. Like मेरे parents, because I stay away from my home, I am working, so it was difficult for my parents to go. Whenever my parents used to go at any place, no, like people are asking कि क्यों हुआ, और फिर people are like ताली तो दो हाथों से बजती है, उसका भी कुछ गलती होगा, उसने शायद एडजस्ट नहीं किया होगा, उसने शायद कॉम्प्रोमाइज नहीं किया होगा, जबकि like he was the person who left and I was ready to compromise on everything what he was saying, but he was not ready to come back. तो वो चीज थी. एंड डीलिंग विथ लॉयर्स ऑल्सो इज वेरी डिफिकल्ट. नाउ आई एम लाइक हैविंग द थर्ड लॉयर. बिफोर दिस आई हैव चेंज 2 lawyers because it was like they were just taking money and they were not doing anything. And the way it was like they were like उन्होंने कभी कभी मुझे ये चीज पूछी कि हम लोग श्रीलंका जा रहे हैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो क्या यू वुड लाइक टू जॉइन अस, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. तो आई चेंज्ड माय लॉयर्स. और ये चीज मुझे बाहर भी लगी, लाइक पीपल थिंक दैट बिकॉज यू आर सेपरेटेड यू आर इजीली अवेलेबल. So even your mutual friends, your relatives, somebody might come to you and say that let's have something casual until you find somebody suitable for marriage and all. So that is so painful and traumatic to hear. So yeah. I know you feel like you are an object to be used and you're easily available to people. Yes. And I also have had these experiences with lawyers where they just take your money and then they sit tight and they take money from the opposite side. And that man had money to shell out to my lawyer rather than give them to his own children. You know, even I have changed multiple lawyers, and finally you are dealing with so many things: your job front, your children, single parenting, your own parents, and narcissistic spouses who think that everything is wrong with the other person, and their family who supports them, and your family who keeps on telling you that you should adjust, you know, अपने बच्चों की तरफ देखो या whatever, हमारी तरफ देखो. Thankfully, like my parents were very supportive. They told me good that you ना तुम्हें जल्दी पता चल गया, ये अच्छी बात है कि तुम्हें 3 महीने में पता चल गया, तुम बाहर आ गई ये चीज से जल्दी, ये अच्छी चीज है. और आज भी वो लोग मुझे यही कहते हैं कि तुम जल्दी से मतलब जस्ट गिव डिवोर्स एंड फाइंड समबडी एंड मूव ऑन, बिकॉज लाइक लाइफ बहुत बड़ी है. और क्यों मतलब ऐसे एक बैड चैप्टर को लेकर मतलब रखना है ना. इट इज काइंड ऑफ वुंड बिकॉज एवरी टाइम द कोर्ट्स एटमोस्फियर इज वेरी डिफरेंट. एंड द अदर थिंग इज आई एम वर्किंग, तो आई हैव टू टेक लीव, and every time getting a leave is not that easy. So it is, I don't know, like whenever I go to that court I feel so like people are like मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है वहाँ का environment. Everybody is depressed and sad, and I used to be as usual cheerful, and that guy who calls out the names, na, he used to look at me like, ye pagal hai kya? She comes all cheery and all. Eventually my cheeriness also died down. But initially when I used to be like, you know, try to be cheerful, log mujhe dekhte the ki aise she's not in touch with reality types. It is a very depressing atmosphere. Yeah. I can totally relate to that, अश्विनी, क्योंकि मैं बिल्कुल लाइट हार्टेड तरीके से हम जाते थे कोर्ट में हमारे डिवोर्स के लिए, और वहां पे सब जज भी हमें ऐसे सीरियसली देख रहे हैं जैसे पता नहीं हम कोई पाप कर दिया जो हमने डिवोर्स फाइल कर दिया. और यू नो दे यूज्ड टू बी वेरी एस्टोनिश्ड. हम काउंसलर के सामने बैठे हैं, दे यूज्ड टू बी वेरी एस्टोनिश्ड दैट वी आर टॉकिंग सो नॉर्मली. सब कुछ मतलब उनको ये विश्वास ही नहीं होता. तो वहां पे जितने भी लोग आते हैं ना, ऐसे कई जगह पे तो चिल्लम चिल्ली एक दूसरे पे ऐसे चिल्लाना और ये सब भी चालू रहता है. सो इट्स लाइक आई कैन रिलेट टू दैट वन. इट्स वेरी डिप्रेसिंग. And my ex-husband used to, you know, he can cry at the drop of a hat. So उसके lawyer का decide हुआ था कि strategy ऐसे ही करेंगे कि, you know, he would start crying in the court, in front of the counselor, in front of the judge,
And I तो had given up hopes only that anybody would, listen to my side at all. और मेरी lawyer चुप बैठती थी, and his lawyer used to ask me really mean and character assassination kind of questions, and I used to just squirm because I could not answer in that language, and as it is like 10 साल 15 साल से मैं यही देख रही थी कि मेरे पेरेंट्स भी मेरी नहीं सुनते, बिकॉज उसके तो ही वाज लाइक, माय डॉटर यूज्ड टू कॉल हिम डॉक्टर जेकिल मिस्टर हाइड, डबल पर्सनालिटी. So yeah, it is very difficult sometimes, just because he didn't want to give any money to me or my kids. And Nirmal says that the laws are in favor of the women, but I didn't get a single pie after spending 25 years with that man who had nothing, and he is now earning in crores. He didn't give anything to the kids, he didn't give anything to me, and he just kept paying off my lawyers so that he didn't have to shell anything. That was really awful, but I was like so sick of everything, and twice the last time I filed for divorce, before I had filed for maintenance of kids, कुछ नहीं, पैसे नहीं दिए, and means I feel I was like कि just get out of my life, मत दे पैसे, पर just let me go and live my life kind of. Yeah, Nirmal, you were saying something. So I wanted to say कि अगर लॉ को अब्यूज करना है, so it is more abusable from female side of it. But अगर हाँ डिनाई करना है किसी को मेंटेनेंस, so equally that opposite lawyer also have those strategies. तो वो काउंटर करके they can balance it out, so you won't get money also. So it depends कि आप कैसे लॉयर पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, and how faithful that lawyer is. या आप कैसे नेगोशिएट करते हैं बेस्ड ऑन सम परसेंटेज, लाइक नमिता वाज सेइंग कि परसेंटेज डिसाइड रहता है लॉयर्स का. Either you get that percentage from female side or the counterpart. Bribes are Actually, also I very feel common in Actually, I feel I was so inundated with work, housework, financial difficulties, bringing up the kids, handling the kids' emotional difficulties, my job front, that I didn't have the time to do all the background research. The amount of background reading I'm doing now. एंड किसको पूछे कि कौन सा लॉयर अच्छा है, कौन सा अच्छा लॉयर नहीं है, कौन है जो ओन अप करेगा कि हाँ. आई डेंट हैव फ्रेंड्स हु आर गोइंग थ्रू डिवोर्स. द मोमेंट यू आर गोइंग थ्रू डिवोर्स, पीपल विल treat you like some kind of leper, you get completely isolated socially. So किसको पूछे कि लॉयर कौन सा है, किसके पास जाए. आई डेंट हैव एनी आइडिया कि किसके पास जाऊं मैं. सो इन माय केस तो मैं बहुत ज्यादा डिफेम हुआ था पब्लिकली, ऑफिस में भी. एंड मेरे एक्स पार्टनर ने बहुत ही मतलब न्यूडिटी वाले फोटोज मेरे एचआर को, मेरे कलीग्स को भेजा. एंड आफ्टर दैट एक ऐसा स्टेज आ गया ना कि उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता कि इससे ज्यादा तो और क्या ही बदनामी हो जाएगी. सो इन माय केस व्हाट हैपेंड कि ठीक है, मेरे को भी वैसे कंफ्यूजन था कि कौन सा लॉ अच्छा है, कौन सा लॉयर अच्छा है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी डू यू यूज. तो नहीं पता, जब पता चलता है तो एटलीस्ट मैट्रिमोनियल लॉ की जो बुक्स है ना, इट्स वेरी स्मॉल, मतलब एटलीस्ट यू कैन कवर इट अप 2-3 महीने में. सो आई डिड दैट स्टडी माई सेल्फ. उसके बाद लॉयर की जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह है, इट वॉज ऑल माइन. मैं 2.5 साल से आई एम फाइटिंग दैट केस, एंड मैंने अभी तक एक सिंगल रुपीज नहीं दिया है, लॉयर को भी ज्यादा कुछ नहीं दिया, बिकॉज वो ड्राफ्टिंग वगैरह स्ट्रेटेजी सारी मेरी है. लॉयर को सिर्फ मैं ड्राफ्टिंग एंड रिप्रेजेंटेशन का देता हूँ जो भी चार्जेस है. Maybe मेरा Nirmal, you केस तो can be बहुत a ही गंदा है. pro bono advisor. No, आई डिड इट फॉर माई सेल्फ. बट हाँ, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग होता है. एंड जो कोर्ट का एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं आप, तो नाउ मतलब आई डोंट नो अबाउट डिफरेंट कोर्ट्स, बट मैं जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता हूँ अनुगुल में, वहाँ पे सारे जितने भी जो बुलाते हैं, जो लॉयर हैं या फिर जो जजेस हैं, मतलब 2,000 काइंड ऑफ फ्रेंडली बन गए कि ठीक है, इसके ऊपर तो इतने सारे चार्जेस लगे हैं और एक भी चार्ज 2.5 साल से प्रूव नहीं हो पा रहा है. तो हम हंसते हुए जाते हैं, लॉयर भी हंस रहा होता है, उनका काउंटर पार्ट भी हंस रहा होता है. सो व्हाट हैपेंड ना, मतलब मेरे केस में एक छोटी सी स्टोरी मैं बताता हूँ कि मेरा जो लॉयर था, आई एम बॉर्न एंड बॉट अप आउटसाइड ओडिशा, तो यहाँ पे जो लॉयर था वो जानबूझ के रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा करता था. सो आई हैड ऑल्सो अ स्ट्रेंथ कि मैं हिंदी मीडियम का था, तो मेरी हिंदी एंड संस्कृत वॉज वेरी गुड. तो जब वो मुझे रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा करता था, तो आई यूज टू काउंटर हिम
विथ बहुत ही ट्रेडिशनल हिंदी, इक्विवेलेंट टू संस्कृत। तो फिर वो वहां पे सब हंसते थे कि ना उसकी बात मुझे समझ में आ रही है, ना मेरी बात उसको समझ में आ रही। एंड लास्ट में जज यूज्ड टू इंटरवेन कि यार बंद करो, कम बैक टू द नॉर्मल। सो मेरे लिए तो इट वाज लाइक फन। अभी तो मजा ही चल रहा है, मतलब सीरियस नहीं रहा कुछ। My God, hats off to you, Nirmal. I used to be like quite मतलब हाँ हमने तो फिल्मों में ही देखा था वो कटघरा और वहां जाते हैं और हाँ, मतलब बात थोड़ा करते हैं। इंस्पिरेशन वहीं इट्स से मिला रियली है। वेरी हाँ। वेरी ओवरवेलमिंग। हम्म। तो मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्स स्टडीज वगैरह वो सब बहुत टाइम्स मैंने स्पेंड किया, मतलब 3-4 महीना ओवरनाइट, बिकॉज ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। तो और इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन, इतना ज्यादा डिफॉर्मेशन के बाद आई आई टुक इट पर्सनली कि ठीक है, अब तो मुझे इन पर्सन रिप्रेजेंट करना है। बट क्या होता है यहाँ पे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है, तो इसलिए मैंने फ्रंट एंड नहीं किया। बट हाँ, बाकी सारी चीजें वाज नाइस। सो मेरी एक्स पार्टनर भी अभी अडल्ट्री में है। एंड आई ऑल्सो, मतलब फॉर्चुनेटली, मतलब क्या बोलते हैं, द नेचर इज सो गुड एंड नाइस टू मी कि आई सॉ माई एक्स वाइफ इन अ मैरिड, क्या बोलते हैं, क्या कपड़े में, क्या बोलते हैं, चूड़ी वूड़ी लगा के मेरे सामने से। एंड मतलब व्हेन आई सॉ हर, तो मैं हंसने लग गया उसको देख के रोड पे। एंड वो फिर अपनी स्कूटी लेके भाग गई। एंड शी वाज थिंकिंग कि मैं उसे शायद चेज करूंगा, या मैं जहां पे रहती है एटलीस्ट मैं उसको जाके ढूंढूंगा या एक्सपोज करूंगा। तो आई डिड नथिंग एट ऑल। वो अभी भी कोर्ट में जाके शी इज आस्किंग कि हाँ मुझे एलिमनी दे दो या मुझे मेंटेनेंस दे दो। आई सेड नहीं, मैं आपको मंथली मेंटेनेंस दूंगा, और वो भी तब दूंगा जब आप यू प्रूव दैट यू आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू बियर योर एक्सपेंसेस। सो ऑन पेपर शी इज मोर क्वालिफाइड देन मी, शी इज एन MBA, आई एम जस्ट एन BTech. That's a silence and ignorance is bliss for you. यस यस यस। तो उसने जितने हाथ पैर मारने थे ना, मतलब शी हैज ट्राइड एवरी स्ट्रैटेजी, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम गुंडे भेज के, गन पुलिस वगैरह के साथ, देन पॉलिटिकल प्रेशर के बाद। बट मतलब गॉड इज सो ग्रेसफुल टू मी कि हाँ मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा हुआ कि हाँ धक्का लगा, गड्ढे पे गिरा, बट मैं उठ गया आराम से। तो देयर वाज डिवाइन सपोर्ट ऑल्सो। सो नाउ आई नो दैट कि वो अडल्ट्री में भी है, शी इज मैरिड ऑल्सो, बट ठीक है, लेट इट बी। Nirmal, that's really brave of you, and thank you for sharing. Yeah, so we have Sony this time, a new joinee. So, Sony, would you like to talk something about yourself? No, fine. It's fine. I'll be hearing now. Okay, thank Okay, my hand is up. you. Do you want to say? Yeah, Mohit, please go ahead. Yeah, so अभी अभी हम लोग आई थिंक नमिता बात कर रहे थे सोशल सर्कल की एंड ऑल। बेसिकली आई थिंक सेपरेशन के बाद ना हमें अपना पूरा सोशल सर्कल जो है वो चेंज करना पड़ता है। जो आपके पुराने फ्रेंड्स होते हैं, पुराने रिश्तेदार होते हैं, ऑल दैट दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। और कुछ लोग तो पता है मतलब सिर्फ मजा ही लेते हैं कि हाँ यार अच्छा अच्छा ऐसे तू ऐसे कर ले, तू ऐसे कर ले। सो दैट दैट काइंड ऑफ थिंग रियली हर्ट्स। और फिर आप जिससे भी बात करते हो, if the other person is not in listening mode or in helping mode, आप तो अपना पूरा का पूरा ट्रॉमा दोबारा से रीलिव कर लेते हो और दूसरे बंदे को लाइक आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। समटाइम्स वी नीड सम जस्ट लिसनर्स, राइट, कि जो भी हमारे मन में है, जो भी हाइज एंड लोज है, हम लोग शेयर कर लें। और sometimes we need support, sometimes we need to we have so many questions and we need different perspective from other people. तो उसके लिए सोशल सर्कल जो है वो बिल्कुल अलग बनाना पड़ता है, आपको अलग से करना पड़ता है। लकीली आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू जॉइन अ सिंगल पेरेंट ग्रुप, और वहाँ पे बहुत मेल फीमेल्स जो है वो सिंगल पेरेंट्स हैं। एंड आई हैव लाइक सो मेनी फ्रेंड्स जिनके साथ मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं कि चाय ले ली और शाम को जो है आप अपना जो भी डिस्कस करना है आप कर लो। और वो इतना प्यारा सर्कल बन गया है कि मेरे बच्चों के फोन में
2-3 सिंगल पेरेंट्स का नंबर है, और वो कभी भी जैसे कुछ बात होती है या मामा की याद आ रही है या वट एवर इट इज, दे कॉल अप टू देम एंड दे टॉक उनके बच्चों के साथ, और उनके साथ, और उनके बच्चे भी ऐसा है कि मेरे साथ बात कर लेते हैं. सो वी नीड टू काइंड ऑफ क्रिएट अ सेफ सर्कल. और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. तो हमें वो विलेज बनाना पड़ता है, एंड वो टोटली डिफरेंट होता है. आपके पुराने दोस्त वो सब उस विलेज में इंक्लूड हो ही नहीं सकते. That's what I wanted to share. And it's kind of, the same thing that Namita said, that आप उससे जब तक आप उससे ना गुजरो, उस एक्सपीरियंस से और उस इमोशनल हैवीनेस से, तभी आप दूसरे की मतलब सिचुएशन या स्ट्रगल समझ पाओगे. Because Right. I'm saying this because there seems to be like a guys versus gals kind of atmosphere that is getting generated, and I wanted to underline the fact that all those who are going through this situation, irrespective of the gender, we are all suffering the same thing. We are suffering isolation, we are suffering emotional trauma, we are suffering judgment from our immediate family and society, and it feels like a uphill struggle pretty much every day. At the same time, I feel when I separated, and finally, because my ex's personality was such that there was nothing, there could be nothing wrong with him. He was the epitome of kya sarvaguna sampanna. My kids went to, and it was also part of his strategy, breaking the kids from me, making me as miserable as possible. And he wanted to win the case, sort of, because the kids would be the main witness. And I never finally produced the kids in the court. I said, I don't want a single rupee of yours, but I don't want the kids to come to court anytime. So I was left completely alone. And yeah, I mean, irrespective of the gender, I think there is one person who is definitely, both are suffering. Now I have come to that point where I feel both people suffered, irrespective of who wants to win and who doesn't mind, who just going through things. Both are suffering. And so when I went out of the country, my kids had left me and gone to stay with their father. I met a completely different circle of people. And one of my friends told me that, when I look at you, I see a person, मुझे एक चिड़िया दिखती है जो आसमान से गिर गई, और क्योंकि उसके पर में पत्थर लगा था, और वो सोच रही कि वो उसकी गलती थी. It took me a very long time, to understand that कि वो मेरी गलती नहीं थी, and that she was talking about me. And because I used to avoid people, I used to avoid get-togethers. I had so much negative feelings about myself. So, yeah, Mohit, while I do sympathize, and I do sympathize with Namita, I really want to say that, when I started looking at myself in a different way, without the glasses of other people, it kind of changed my life for me. Does that make sense? Yeah. And there's one more thing I want to share. Like मेरा एक दोस्त है, उसका डिवोर्स चल रहा था 2.5-3 साल से. So his wife was like all like सब तरह के stunts and all that, सब कुछ बच्चों को लेके and all that सब कुछ कर रही थी. And finally उसने 1.5 करोड़ रुपीस दिए उसको, और बेटा भी दिया, एंड डिवोर्स हो गया. 3 महीने के बाद नाउ शी इज फीलिंग बोर्ड. वो बोर हो गई है, उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, वो क्या करे. किसी पे विश्वास नहीं कर सकती, बच्चा उसको संभालना नहीं आ रहा है, एंड शी इज ट्राइंग टू कम बैक कि तू पैसे ले ले वापस और हम लोग दोबारा से रहते. तो एक वो जो जर्नी है ना, वो जर्नी उसको अच्छी लग रही थी, बट जब उसको मंजिल मिल गई जो चाहिए था, उसके बाद मतलब कि अब क्या. तो ये भी इस तरह के केस भी हैं कि आप एंजॉय कर रहे हो वो जर्नी, वो गुस्सा, वो
पैंतरे जो आप खेल रहे हो, और अल्टीमेटली जब एक मंजिल मिल जाती है उसके बाद आपको समझ भी नहीं आता कि अब क्या। तो आई डोंट नो। And did you advise your friend? Did your friend ask for advice कि क्या करना चाहिए? नहीं, हम दोनों का मतलब Controversial situation. हम लोग दोनों जो है ना, मतलब काफी स्कूल टाइम मेट्स हैं। वी ऑलवेज कॉल अस चड्डी बडी। सो हम दोनों का ये वही रूल है कि शीशे के सामने खड़े हो जाओ और पूछो तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए, जो दिल से आवाज आए वो कर डालो। डोंट थिंक अबाउट कि ब्रेन क्या कह रहा है, दुनिया क्या कहेगी। शीशे के सामने खड़े होके अपने आप से पूछ लो कि हाँ भैया, जिंदगी में तेरे को क्या चाहिए। द आंसर यू विल गेट, यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। तो उसने भी वही किया एंड ही सेड नो, मुझे नहीं चाहिए। बच्चे को मैं सब कुछ दे रहा हूँ। मैंने दे भी दिया 1.5 करोड़। मैं हर हफ्ते बच्चे को मिलने भी आऊंगा, बट तेरे साथ कोई रिलेशन नहीं। आई एम सॉरी। जो लोगों को एडिक्शन टू ड्रामा होता है ना मोहित, तो या तो वो जिनके साथ है उनकी जिंदगी में जबरदस्ती का ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, और हाँ, कोई तो रीजन होता है कि हम भी उस ड्रामा में, जो भी लोग फंस जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं तो उस चीज से अट्रैक्टेड होते हैं, राइट? क्योंकि हमें जो भी रीजन होता है, बट हमारा जब घड़ा भर जाता है और हम लोगों के ड्रामे से परेशान हो जाते हैं, फिर हमें ये लगता है ना कि बस भाई अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा, राइट? हमारा हो गया, हम्म, ये और नहीं हम्म, चलेगा। सो प्रोबेबली योर फ्रेंड हैज रीच दैट स्पेस, बट his ex-wife has not reached that space. तो अब उसको यहाँ से ड्रामा नहीं मिलेगा, so she will find somebody else to create that drama with. yes, Because that's the whole point about creating drama. कि चीजें नॉर्मली अच्छी नहीं लगती, थिंग्स आर ऑल नॉर्मल, ऑल गुड, तो फिर खुजली होने लगती है कि अरे अभी अभी ड्रामा कैसे नहीं है लाइफ में, तो हाँ। अभी जबरदस्ती ड्रामा करो, क्रिएट करो। आई थिंक मेरी वाइफ के केस में भी कुछ ऐसा है, बिकॉज उसको ना एक फतूर चढ़ता है किसी चीज का। तो जैसे बीच में फतूर चढ़ा कि मैंने पढ़ाई करनी है, तो 1.5 साल तक शी लुक्ड एट ऑल द कोर्सेज, सब्जेक्ट, ये वो किया, कुछ नहीं। फिर एक दिन फतूर चढ़ा कि मुझे गार्डनिंग करनी है। सो यू वोंट बिलीव, मेरे घर में 3.5-4 लाख रुपए के ना प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सक्लेंट्स और रेयर ब्रीड्स एंड Can't ऑल hear you, Mohan. He's audible to me. ओके। तो वो मेरे घर में ना, वो उस तरह से 3.5 लाख के प्लांट्स हैं। तो अभी भी मैं उस गार्डनर को हर महीने 3500 रुपीज दे रहा हूँ कि भैया मेंटेन कर, मेरी इन्वेस्टमेंट है, 4 लाख लगे हुए हैं। एटलीस्ट और कुछ नहीं, किसी के घर जाऊंगा गिफ्ट देता रहूंगा एक एक करके सबको। और अमेजोन पे कोई भी नई चीज आती थी तो उसमें परचेज करनी ही करनी है। तो इस तरह का एक ना फतूर चढ़ता है कि मेरे को मतलब घर पे अगर ऑर्गेनाइज करना है तो सब तरह के जो भी अमेजोन पे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल है, सारे के सारे मेरे घर पे पड़े हैं। इवन शूज के लिए, शर्ट्स के लिए, ब्रशेस के लिए, एवरीथिंग। तो मेरा ख्याल ये जो डिवोर्स है ना, कि मेरे से अलग होना है और जिंदगी में कुछ मतलब झंझोल करना है, तो आई डोंट नो, ये भी शायद उसका एक वो फेज होगा कि हाँ मेरे को अपनी लाइफ में ये वाला ड्रामा चाहिए। तो बट उस केस में बहुत बहुत कुछ तोड़ लिया और बहुत नुकसान कर लिया, आई गेस। आई डोंट नो आगे जाके अकल आती है नहीं आती है, आए भी तो शी विल बी ऑल अलोन, आई गेस। आई डोंट नो क्या बनेगा मोहित यही है उसका। ना, फिर वो दोबारा होगा। आई मीन ये फतूर एक बार निकल भी गया, फिर शी रिग्रेट्स हाँ, एंड देन अगेन शी विल गो बैक टू द सेम थिंग, राइट? तो ये राइट, मुझे राइट। कोई साइकोलॉजिकल वो लग रहा है, कोई ओसीडी बाइपोलर सॉर्ट ऑफ स्टफ की एकदम से वो मेनियाक फेज में आती है, तो शी स्टार्ट्स डूइंग स्टफ, देन शी गोस बैक टू नॉर्मल, देन अगेन अनदर थिंग, so that तो will carry on for the rest of his her life as well. आई थिंक सो। वो लास्ट टाइम जब मेरी कॉल हुई थी, मैंने कहा भी था कि अगर तू कुछ इलाज विलाज करवा रही है, शी इज गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट और समथिंग, तो मैंने बोला था कि भाई घर पे आके करा ले, यहाँ पे तेरे को खाना खुना बना बनाया मिल जाएगा, सब कुछ है, आराम से करा ले, इलाज करवाना। बस शी सेड नहीं, यहीं पे करा। ओके फाइन। बस बात ये है ना कि ड्रामा से तो हम सभी मतलब हम सभी कहीं ना किसी लेवल का ड्रामा होता है, बट व्हेन इट बिकम्स एन एडिक्शन ना, तो उसमें हम ये भूल जाते हैं कि उससे नुकसान हम दूसरे का भी कर रहे हैं और खुद का भी कितना कर रहे हैं, राइट? इट्स नॉट अ ड्रामा विच इज हेल्दी, इट्स नॉट अ ड्रामा विच इज एडिशनल। हम सबको ही नीड होती है कि हम ट्रैवल करें, हम हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी भी हो, हमारे पास सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो, वैरायटी भी हो, दोनों चीजें हो, राइट? सो दैट लाइफ कैन फंक्शन प्रॉपरली। कोई भी एक पलड़ा भारी हो गया, देन इट बिकम्स हार्ड टू मैनेज लाइफ।
But then when it goes to this point where you can either be addicted to stuff, buying stuff, going for shopping, ऐसे कितने लोग हैं आज की डेट में who are addicted to shopping. वो मैं अपनी मॉम को कभी कभी देखती हूँ ना, she will just open the phone, उनको कुछ खरीदना भी नहीं है, she will just continue to scroll that Amazon, Flipkart. बीच में मैं इतना परेशान हो गई थी उनसे, it's been 2-3 months, now she has stopped doing it, कि मैंने उनको बोला कि मम्मी जब तुम्हें कुछ खरीदना हो, जब तुम कुछ फाइनलाइज कर दो, मुझे भेज दो, I'll order it for you. बट ये दिन भर का ये नहीं. A lot of people are addicted to social media, पूरे दिन फोन पे बैठे हैं, स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि 4 घंटे हो चुके हैं. So these are still, less hazardous forms of addiction जिसमें आप खुद को harm कर रहे हो, but then it extends and goes to a place where it starts harming your family, your kids, your work, your पता नहीं क्या क्या. फिर वहां पे तो it's a complete mess. वो मतलब कहीं नहीं जा रही है फिर वो चीज. मेरे केस में तो मेरे ख्याल जो मेरे बच्चों की नानी मम्मा है वो सबसे ज्यादा हर्ट हुई, सबसे ज्यादा. वो जब भी उनसे मैं मिलता हूँ, आई हैड अ वेरी गुड टर्म्स विद हर. मैं हर हफ्ते उनके पास जाता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ, वो मेरे लिए कुछ खाना बनाती है, मैंने कुछ अगर घर पे मेरे कुछ अच्छा बना है मैं लेके जाता हूँ, बच्चे मिलने जाते हैं, डेली हमारा मतलब अभी कुछ ना कुछ होता है. तो जो उनको लगता है ना कि उनको अपनी कोक पे मतलब डाउट होता है कि मतलब ये मैंने क्या पैदा किया है. So she always cries and all that. तो उनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कई बार. या बस ये चीज होती है ना कि कभी कोई सोशल मीडिया या ऐसी नॉन सेंटिएंट चीज खिलौना होती है, फिर जब इंसान खिलौना बन जाता है फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर स्टिमुलस, फॉर मेंटल स्टिमुलस, तो वहां पे वी डोंट रियलाइज इट कि हम क्या कर रहे हैं. वी एंड अप हर्टिंग सो मेनी पीपल, us ourselves, we end up destroying things. बट हाँ, ये गेम हम बहुत लंबा नहीं खेल सकते, राइट? क्योंकि हम सब ना अंदर से इंसान है, और हमें किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब हमें ना बाद में ये रियलाइज होता है कि यार मैंने क्या कर दिया ये. और वही है कि unless of course somebody is truly narcissistic or has an NPD or something like that, कि उनको वो intentionally ये सब कर रहे हैं. बट ऐसे देखा जाए तो हम सब मोस्टली ह्यूमन बीइंग्स आर गुड हार्टेड. वो कहीं ना कहीं एक इंसानियत वाली चीज होती है. तो वही है, जिसकी जब आंखें खुलें. बट एनीवे, we went into a different tangent. Over to you, Ashwini. हम तो कुछ addiction to drama की बातें करने लग गए थे. नहीं, it was all very much relevant. We are discussing controversies, and this is a controversy that people start out with dreams of being happy together, and then they end up, sort of harming each other, whether unwillingly, apparently quite willingly and happily, एक दूसरे को नोच रहे हैं और उसी में मजा ले रहे हैं. तो yeah, this is also a big controversy of divorce, like people who are willing to die for each other, or at least be there for each other in sickness, health, and wellness, and are suddenly willing to kill each other's happiness. So yeah, and I think apart from the emotional unraveling and the loss of dreams and the social pressure, does anyone still feel that breaking of marriages is a sin or something like that? Because that is also one of the facets of the controversy of divorce. So I suppose nobody is laboring under that misconception. Nirmal, you wanted to मुझे say? लगता है कि Sorry? अगर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर आप ड्रैग ऑन कर रहे हो, आप अपने साथ एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हो. भगवान ने अगर ये लाइफ दी है तो वो हर एक के लिए एक अच्छी तरह से जीने के लिए दी है, आपको सफर करने के लिए नहीं दी है. तो अगर आप अपने साथ कुछ बुरा कर रहे हो तो वो भी इक्वलेंट टू अ सिन ही है.
आप गलत रिलेशनशिप पे, वो भी एक सिन है। मतलब इट्स नॉट कि आप किसी को जाकर चाकू मार के आ रहे हो तो वही सिन है। आप अपने साथ अगर कुछ गलत करो वो भी एक अहिंसा नहीं है, इवन इन योगा, सो इट्स रॉन्ग। I agree, Namita, but from my own personal angle, last time we were discussing something else, and Akarma said, that 3-point theory of love, passion, commitment, and what was the third thing, Akarma? So, Intimacy. Passion, intimacy. yeah. We had no intimacy, we had no passion, but my husband was, for the sake of society, he didn't want to be the bad guy, so he was like committed. And I was very unhappy, but I was not sure whether I should think for my happiness or my role as a mother, and what would be good for the happiness of my children. So sometimes, it's a very difficult sort of controversial situation to be in. कि क्या करें? If I am an unhappy person, am I able to be a good mother? And if I am thinking of my own happiness, am I being a good mother? Something. What will be good for my children? Something like that. हाँ, एक एथिकल डायलेमा आ जाता है, कैन अंडरस्टैंड। Yeah, ethical, emotional, and nobody can advise you because it is completely and totally your personal decision. ट्रू ट्रू। Pretty much. Nobody wants any part of that. Nirmal, you are unmuted. You wanted to say Yeah, so something? I wanted to say कि मतलब मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि जो मैरिजेस ब्रेक होती है, इट्स मतलब समहाउ कोई थर्ड पार्टी इंटरवेन होता है या कुछ ईगो क्लैशेस होती है। बिकॉज इन माय केस जो मेरा पार्टनर था, द एग्जांपल यू सेड कि बिफोर मैरिज दैट पर्सन वाज रेडी टू डू एंड डाई फॉर मी, बट आफ्टर मैरिज एंड 6 मंथ के बाद पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि दैट पर्सन इज मतलब ट्राइंग टू किल मी ऑल्सो। मतलब इट वेंट सो bad कि it started impacting my physical health first, then mental health, then क्या किया, I got hospitalized also, then उसके बाद ये पूरा डाउरी फॉर 90 डे का पूरा पैकेज चिपका दिया मेरे पर। और अभी तक मतलब शी इज लाइक मुझे अभी थ्रेटन कर रही है कोर्ट्स में कि मैं तो तुझे मार डालूंगी। मैंने बोला ठीक है, ट्राई मी। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या हो जाता है या ऐसा क्या हो गया है। इट वाज सिंपल, मतलब छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग करके, एंड इट्स लाइक नाउ कि अभी इतनी बड़ी इगो फाइट हो गई कि मैं तो इसको मार डालूंगी, और मेरे को धमकी दे रही कि तू आज यहाँ से इस डिस्ट्रिक्ट से जिंदा वापस नहीं निकल पाएंगे। तो आई सेड कि ठीक है, ट्राई मी। तो निर्मल, ऐसे होता है कि जो लोग मोहब्बत शिद्दत से करते हैं ना, वो दुश्मनी भी शिद्दत से करते हैं। सो आई डोंट एग्री बिकॉज 6 मंथ में मोहब्बत कहीं चली जाएगी, इट्स समथिंग यार नॉट 17 years में एक्सेप्टेबल। चली जाती है भाई, 17 years में चली जाती है। So you never know what's going to happen. Life is so random. हाँ। You cannot control anything. Well, I really am sorry for your situation, Nirmal. For Mohit, I suppose what you believe is true, but I believe personally that love includes forgiving, and that's what I believe in. So, and each one Yeah, I is, totally of agree. course. I totally agree. I forgive her every day. I forgave her last month when we were talking. I told her that सब कुछ भूल जाते हैं ना, छोड़, जो हुआ सो हुआ, तू घर वापस आ जा। तेरे को टाइम और चाहिए, 6 महीने, साल ले ले, साल के बाद वापस आ जा, बट ये तो मत करो ना कि हाँ मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। तो अगर लास्ट मंथ आई थिंक अगर मैं नाम का बोथ नोज, आई हैड अ कॉल कि मेरे को ऐसा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ करूँ या ना करूँ। तो मैंने ही ऑफर दिया था उसको, but I was like all willing कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, और वो भी भूल ले, वो भी मैं दोबारा बात भी नहीं करेंगे कभी भी। शादी से पहले भी तो ऐसे हुआ था ना, शी टोल्ड मी ऑल अबाउट हर अफेयर्स, आई टोल्ड हर ऑल अबाउट माय अफेयर्स। तो ये जो 6-8 महीने हैं जिंदगी में से, इसको निकाल के फेंका जा सकता है, बट फॉरगिवनेस तभी काम आती है ना जब दूसरा इंसान जो है वो माफी तो मांग दोनों रहा साइड से हो। वो माफी मांग रहा हो, जब माफी नहीं मांग रहा तो आप माफ करके क्या, कितना माफ कर लो। नहीं तो कर अपने आप को माफ करता हूँ कि भाई सॉरी, तेरे साथ ये सब हुआ और बच्चों के साथ ये सब हो रहा है, तो अपना अपना भी ध्यान रख और बच्चों का भी ध्यान रख, और कोई पर्पस है ही नहीं, यही है बस। और मोहित, एक चीज और है ना कि फॉरगिवनेस भी तब काम आती है ना जब आप ये डिसाइड कर लो कि ये रिश्ता इतना इंपॉर्टेंट है कि आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे।
बट आई हैव सीन पीपल जो अब्यूसिव भी होते हैं, वो सॉरी मांग भी लेते हैं, गुस्से में कुछ कह दिया, कुछ हर्ट कर दिया, फिर वही चीज दोबारा करेंगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो उसका फॉरगिवनेस का भी कोई फायदा नहीं है। ना वही है ना, दोनों तरफ से होना चाहिए ना, दोनों तरफ से अगर आप ये फीलिंग है देन इट कैन वर्क आउट। अगर दोनों तरफ में से नहीं है, एक बंदा सॉरी बोले जा रहा है, एक बंदा जो है वो एडवांटेज लिए जा रहा है, तो फिर वो तो नहीं चलेगा ना। दोनों तरफ से इस तरह से हो तो आई So थिंक to you, Mohit, I will say one thing. The forgiving is not for the other person, it is for you to move on. You know, you may not forget, but you can forgive in order to move on. And yes, my sister used to tell me this, and I used to not understand, but now I have understood that I forgive in order, not in a righteous way or because I am the superior or the better person or anything like that. I forgive because I need to and I wish to move on. या आई यू वोंट बिलीव कि मेरा ना एक रिचुअल है, मैं रात को बच्चों को दोनों को ना काव्या लेफ्ट साइड पे, काव्या राइट साइड पे, दोनों मेरे पास होते हैं। हम लोग 15 मिनट आधा घंटा, जब तक इनको नींद नहीं आती, वी टॉक एंड एवरीथिंग। और मैं कई बार ये लोग बोलते हैं, अपनी मम्मी को गालियां निकालते हैं, कर्स वर्ड्स यूज करते हैं उसके लिए, या उसने ऐसे किया वैसे किया। तो मैं इनको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि बेटा जो भी किया ना, मम्मा ने अपने दिमाग से किया। शी वांटेड समथिंग इन हर लाइफ एंड शी वेंट टू गेट दैट। तो हमें उनको कर्स नहीं करना है। आपको जो फीलिंग हो रही है, आप सैड फील कर रहे हो, दैट्स ओके, यू कैन फील सैड, बट आप उनको उनके लिए प्रे करो कि अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले ही लिया है लाइफ में, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इन फ्रॉम माई हार्ट कि अगर उसने इतना बड़ा स्टेप ले ही लिया है, सो शी शुड गेट ऑल दैट। मैं प्रे करता हूँ उसके लिए कि वो ठीक रहे, वो सेफ रहे, उसको जो चाहिए वो लाइफ में मिल जाए, और मेरे को परेशान ज्यादा ना करे, बाकी सब ठीक है। तो आई ऑलवेज, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि रिस्पेक्ट करो, शी इज योर बायोलॉजिकल मदर, जो भी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, वो साथ में ही रहना है, आपको रिस्पेक्ट करना है, और आप प्रे किया करो कि मम्मा ठीक रहे। तो ये मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, बट धीरे धीरे आई थिंक मेरे को वो पत्थर पे पानी फेंक के रहना पड़ेगा जब तक वो बच्चों के मन में वो चीज ना आ जाए। मैं तो हर तरह से इनको बोलता हूँ कि आप बात करो। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना फैमिली का। आई नेवर वेंट ऑन अ कॉल, बट बच्चे बात करते थे, सब कुछ करते थे। नाउ द किड्स आर फीलिंग के मम्मा इज चीटिंग अगेन, के वो आ नहीं रही हैं, बट हमसे बात करना चाहती है, सिर्फ उस टाइम पे बात कर सकती हैं जब वो अवेलेबल हैं। हम उस टाइम पे बात नहीं कर सकते जब हमें चाहिए। वी कैन नॉट हग हर, वी कैन नॉट सी हर, वी कैन नॉट टच हर। तो वो तो बच्चों का भी तो एक अपना वो हार्ट और दिमाग है ना, तो वो उस चीज से सोचते हैं। बट हम तो वही है कि इनको एक अच्छी चीज सिखा सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बड़े आदमी बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो अच्छे इंसान बने। तो उसके लिए इनको अपनी मदर को माफ करना बहुत जरूरी है, वरना ये चीज जो है ये सारी उम्र इनके साथ रहेगी, और ये ट्रॉमा जो है इनको बहुत ज्यादा, दे वोंट बी एबल टू ट्रस्ट एनीवन इन देयर लाइफ, एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्सट्रीमली वरीड अबाउट। Yeah, that's a great sentiment, Mohit. We've already overshot the time. That's from a morality and ethical and good human being point of view, it's a good sentiment to have, but that's not really how forgiveness can be practiced, and that's not what forgiveness looks like. मतलब हम कोशिश कर सकते हैं to forgive and to forgive and to forgive and to forgive, लेकिन आप एक चीज इस चीज को समझ के देखो ना, कि मान लेते हैं कि मेरे साथ रेप हो गया, ठीक है, somebody has come and raped me and I come to you guys and I share with you that I got raped, ठीक है, and I'm very vengeful, I'm very angry and I'm very बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, बहुत बहुत ही, मतलब मैं मार देना चाहती हूँ किसी को, ठीक है, जान ले लेना चाहती हूँ उस बंदे की जिसने मेरे साथ ऐसा किया। आप में से कोई भी मुझे ये बोलेगा कि forgive that person? क्या बोलेंगे आप लोग? कोई भी? मोहित, what would you tell me? नहीं, I would not tell you, but forgiveness जो है वो आपको नहीं करना है। I think अगर वो इंसान जिसने आपके साथ गलत किया, अगर वो आपको forgive करता है, लेट्स से वो कहता है कि ठीक है, मैंने आपकी जिंदगी खराब कर दी, ठीक है, हो गया इस तरह से, तो मैं अपनी दोनों आंखें निकाल के ले आया हूँ,
ये मेरी दोनों आंखें हैं, मैं जिंदगी भर में देखूंगा ही नहीं किसी लड़की की तरफ। तो उससे क्या होगा? मेरा तो रेप हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मेरे को जो ट्रॉमा हुआ है और मेरे को जो द काइंड ऑफ ट्रबल एंड द काइंड ऑफ ट्रॉमा, मैं इतना इतना अपने लिए शेमफुल और गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं अपनी बॉडी से घिन आती है मुझे। आई फील डिसगस्टेड विद माई बॉडी। it's hard to तुम आंखें निकाल के ले आओ, तुम अपना शरीर छोड़ दो मेरे सामने, तुम ये सब करते रहो, उससे क्या होगा? नहीं, बट इट्स हार्ड टू फॉरगिव। बट कहीं ना कहीं आप अगर उसी एग्रेशन और उसी एंगर में रहेंगे तो आप सारी उम्र अपनी लाइफ खराब नहीं करेंगे। एक ना एक टाइम तो चाहे टाइम से आए या कुछ प्रैक्टिस, आई डोंट नो क्या प्रैक्टिस है, बट आई एम श्योर दैट यू कैन गाइड अस बेटर ऑन दैट। बट नहीं नहीं, इट्स नॉट अबाउट कि आई नो बेटर और यू नो बेटर। लेकिन आप मुझे, हम मान लेते हैं मैं आपकी दोस्त हूँ, है ना, और मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, तो दो ऑप्शन हैं। अगर मैं एंगर फील कर रही हूँ और आप मुझे बोलते हैं कि अनामिका यार तू एंगर फील कर रही है और तेरा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है ना, तू तेरा गुस्सा होना जायज है, तू बोल ले, तुझे जो बोलना है, तेरे दिल में जो है वो भड़ास तू निकाल ले मेरे सामने, मैं हूं यहाँ पे, तुझे जो बोलना है तू बोल, है ना, एंड देयर टू सपोर्ट यू। तो एक ये चीज हो गई। और दूसरा एक सेंटेंस हुआ जिसमें आप मुझे बोलेंगे कि लेकिन ये एंगर कब तक रखना है, लेकिन ये कब तक रखना है, वो कब तक रखना है, तुम अपनी लाइफ खराब कर रहे हो। सो विच वन वुड मेक मी फील बेटर? आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं, बट जो थर्ड ऑप्शन मेरे दिमाग में आती है कि अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आई गेस मैं कुछ भी करूंगा उस इंसान को इतना हर्ट करने के लिए कि यू फील कि आपका जो मतलब ही इज सफरिंग मोर देन यू, और उससे शायद यू विल फील बेटर। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एंगर खत्म करो, नहीं, दिस इज व्हाट्स रॉन्ग, जो गलत है वो गलत है, वो नहीं है ठीक। लेकिन एज अ फ्रेंड I would definitely cut him into pieces and put him in front of you so that you should have like a tiny bit of relief in your heart. नहीं ठीक है वो सब तो हम मतलब कर नहीं एग्जांपल दे सकते रहा हैं। हूँ, आपने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से व्हाट आई फील, मतलब मैं शायद इस तरह से करूंगा अपने दोस्त के लिए, और कोई चारा मेरे को नहीं समझ में आता रिलीफ देने के लिए आपको उस सिचुएशन में। नहीं, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इन फ्रंट ऑफ यू कि जब हम पेन में होते हैं तो फॉरगिवनेस, लेटिंग गो और ये सब चीजें अच्छी चीजें हैं। लेकिन कैसा होता है ना, जब हमने यू हैव डन हीलिंग माइंड ब्लॉक्स, सो हमने उसमें आपसे बात की थी स्प्लिट्स की, कि कैसे स्प्लिट्स क्रिएट होते हैं, राइट? सो जब हम ये चीज बोलते हैं कि हमारे अंदर अब दो चीजें उठ रही हैं, एक आपका है लॉजिकल माइंड, एक आपका है कॉन्शियस माइंड जो आपको बोल रहा है कि फॉरगिव करो, है ना, और एक आपका है अंदर वाला पार्ट, the inner part of you which is feeling hurt, which is feeling कि आपके साथ तो बिल्कुल बहुत बुरा हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, ये क्या हो गया। क्या होता है कि अब जब हम ये जो सारे इंटेंस हमारे फीलिंग्स होते हैं, उनको जब तक हम सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर लेते, एक्नॉलेज नहीं कर लेते, राइट? लेट्स सपोज आई हैव एंगर and I come to a point where I am in acceptance with that anger कि हाँ मुझे एंगर है, ठीक है, एंगर है, एंगर आ रहा है, एंगर को जितना होगा आएगा और एंगर चले जाएगा, ठीक है। तो जब हम उस तरीके से, बिकॉज क्या होता है कि फॉरगिवनेस जब हम बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें बहुत ही फोर्स होता है, उसमें बहुत ही ये चीज होती है कि जल्दी से इस चीज को फॉरगिव कर दो, सामने वाले को फॉरगिव कर दो। लेकिन उस फॉरगिवनेस में ना हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर मार देते हैं, दबा देते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि इफ आई एम फीलिंग बैड, एंगर इज बैड, रिजेंटमेंट इज बैड, सैडनेस इज बैड, दिस इज बैड, दैट इज बैड, रिजेक्शन इज बैड, एवरीथिंग इज बैड दैट इज कमिंग अलोंग द वे, ठीक है। और हम बहुत जल्दी फॉरगिव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फॉरगिवनेस आएगी नहीं, फॉरगिवनेस आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप अपनी इन सारे इमोशंस के एक्सेप्टेंस में नहीं आ जाते, और जब तक आप ये नहीं बोलते ना कि यार
वो एक रिलेशनशिप जो आपके साथ है कि कोई बात नहीं मेरे भाई, तू कर फील, तुझे मैं अपने आप को बोलना कोई बात नहीं अनामिका, तू कर फील इमोशन, जो तुझे एंगर फील होता है ना, तू बैठ और आज तू कर ले, कोई बात नहीं, तुझे रोना है तू रो ले, तुझे एक्सप्रेस करना है एक्सप्रेस कर ले. एंड आई डेवलप दैट connection with myself where I come in acceptance with my emotions. Emotions are emotions, they are energy in motion, वो बहुत लंबा रहेंगे नहीं, right? And they dissipate slowly, उनका power कम होता जाता है, and then one day we arrive at a point where forgiveness happens. Forgiveness, हम कोशिश, बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते हैं ना टू forgive, which is not a wrong practice, good, वेरी गुड, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि वो forgiveness के चक्कर में कहीं हम अपने पार्ट्स को डिनाई, और वो क्योंकि यही जो पार्ट्स है ना आपके जिसको आप डिनाई करेंगे, यही आपका फियर बनेंगे टू जिससे कि आप अपने आप को रोकोगे नॉट टू गेट इन एनी अदर रिलेशनशिप, जिससे आपको दिक्कत होगी टू ट्रस्ट अदर पीपल, जिससे आप की स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हो रही है ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करके, आप और कमजोर हो रहे हो. क्योंकि जो अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुनोगे ना, आपका नमिता का, जैसे नमिता ने एक सेंटेंस बोला था, ऐसी फॉरगिवनेस का फायदा क्या, ये सेंटेंस ही अपने आप में गलत सेंटेंस है. द सेंटेंस इन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि फॉरगिवनेस और फायदा एक ही सेंटेंस में आ ही नहीं सकता, वो दोनों स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस ही अलग अलग है. तो अपने आप को इतना फोर्स करने के लिए इतना कुछ, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग कि ये बहुत ही अपने आप को ना हम हर्ट कर देते हैं, अपने आप को हम अपने आप को इस चीज से बाहर जल्दी निकलने के चक्कर में ना हम अपने आप को और दुख पहुंचाते हैं, right? So that's what I'm saying, the lessons that you're giving to your children are very good lessons, right? But you need to see in that space कि वो उनके ऊपर rather than a lesson and a learning, rather than giving that to them, it has to be more experiential. You need to show it to them, right? And you also need to be in that space where they feel comfortable to be in anger, comfortable to be in sadness, comfortable to be to feel all their emotions, and then themselves see कि ये सारे emotions भी ठीक हैं. जब आपके साथ लाइफ में ये होता है तो आपको ये फील होता है, but then the forgiveness happens, right? So that's just what I'm trying to say कि prematurely जब हम forgiveness practice करते हैं ना, तो वो सारी चीजें आपकी बॉडी में डिपॉजिट होती हैं, आपकी साइकी में डिपॉजिट हो जाती हैं, एंड देन हमको ये लग सकता है कि फॉरगिवनेस हुई है, बट फॉरगिवनेस ऐसे नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको इन सारे प्रोसेस में द होल पॉइंट इज अबाउट दैट यू बिकम वन विद इन योर सेल्फ, यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू कम टू यूनिटी, यू कम टू होलनेस. जब आप खुद इतने प्यार से भर जाते हो ना, फिर हो गई फॉरगिवनेस, फिर आप खुद ही इतने प्यार से, आप खुद इतने, आपका मटका इतना भरा हुआ है कि वो ऑलरेडी प्यार से छलक रहा है, right? Then you give out that feeling to somebody else कि यार मैंने तेनू कर दिया, माफ हो गया. I totally agree with you. I think मैंने इस तरह की प्रैक्टिस थोड़ी सी करी है before like talking to you guys, जो भी सेशंस थे and all that. उससे पहले भी like I was feeling very angry, sad और उस तरह से. So मैं एक पेन और पेपर लेके बैठ गया एंड I've written a lot of things. जो मेरे मन में आ रहा था मैं सब कुछ लिखता गया, जो उसको बोलना चाहता था, जो उसको कहना चाहता था, या जो मेरे साथ हुआ. I think पूरा 17-18 पेजेस I've written. और फिर उसके बाद मैंने उसको 2 बार पढ़ा भी, और ताकि मतलब मैं अपने इमोशंस को मैं देख सकूं, मतलब मैंने क्या क्या लिखा उस टाइम पे एंड ऑल दैट. वो 2 दिन के बाद पढ़ा मैंने उनको. तो उन चीजों से मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज हुआ कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है. मैंने जो उसने किया, तब मेरे को जाके ये रियलाइज हुआ कि वो अगर एक स्टेप लेने गई है तो मैं इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहा हूँ. अगर मैं प्यार करता हूँ उससे, उस टाइम पे मैं इतना प्यार करता हूँ, 17 साल मैंने प्यार किया है. प्यार का मतलब लेना तो नहीं होता ना, प्यार का मतलब देना होता है. तो इफ शी इज आस्किंग कि मेरे को छोड़ दो खुला एंड जाने दो, और फिर उसके बाद मेरी जब भी बात हुई है, पहले मैं उसके साथ लड़ाई कर लेता था, मतलब कुछ किसी ना किसी बात पे कुछ सुना दिया, कुछ बोल दिया कि तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया. आई थिंक उसके बाद से मैंने उसको ये बोलना छोड़ दिया कि तूने ऐसे किया, तूने वैसे किया. जब भी बात होती थी मैं नॉर्मली जो उसकी बात
मोहित, आई वांट टू से फ्यू थिंग्स. अभी तक मैं सुन रहा था बहुत देर से, लेकिन दो तीन चीजें मैंने नोटिस की हैं एंड अदर टॉक्स आल्सो. बाकी सब जो बात कर रहे थे, लेकिन आपकी बातों में ना दो तीन चीजें मैंने पिक की थी. एक तो एक सेंटेंस जो आपने कुछ टाइम पहले बोला था कि then we all had a talk, you and your kids, and we decided कि we are dead for her and she is dead for us. तो एक ये सेंटेंस, और दूसरा एक सेंटेंस आपने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था कि आई एम फॉरगिविंग हर एवरी डे. तो कुछ कुछ चीजें ना यू नीड टू वर्क नोट दोज थिंग्स. बाकी तो सब ठीक है, आपने जो प्रैक्टिस की है. इसको समझने के लिए ना व्हाट वी मेरे दिमाग में एक ये आ रहा था एग्जाम्पल कि हमको रात को रोज दिया जलाने की जरूरत इसलिए पड़ती है ना, क्योंकि रात को रोज अंधेरा हो जाता है. जब अंधेरा होता है तो आप लाइट जलाते हो, रोज अंधेरा होता है रोज लाइट जलाते हो. तो अगर फॉरगिविंग भी उसी तरह से हो रही है कि रोज अंधेरा हो रहा है और रोज लाइट जल रही है, that is not the forgiving here that is being talked about. Although हम सब लोग words same use करते हैं और हमको लगता है कि हम सेम बात कर रहे हैं, लेकिन बातें बहुत अलग अलग चल रही हैं यहाँ पे. तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एंड टू सेल्फ रिफ्लेक्ट कि वेयर यू आर इज perhaps understanding the 5 stages of grief. तो जो 5 stages of grief में जो पहली स्टेज है डिनाइल, उसमें से जब इंसान बाहर निकलता है तो ये पॉसिबल है कि आप, मैं यहाँ पे आप बोल रहा हूँ, आपका मतलब एनीबडी हु इज लिसनिंग, एक्सेप्टेंस ऑफ डिनाइल डज नॉट मीन एक्सेप्टेंस. क्योंकि 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में लास्ट की स्टेज है एक्सेप्टेंस. फर्स्ट स्टेज इज डिनाइल. सो व्हेन द पर्सन इज इन डिनाइल एंड देन दे आर नॉट इन डिनाइल, then not in denial is not equal to acceptance. That's the first thing to understand. क्योंकि हो सकता है कि हम वर्ड सेम यूज कर रहे हो और हम क्या होता है कि जब हम सेम वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो हम बहुत जल्दी डिसमिस कर देते हैं किसी थॉट को कि ओके बट ये तो मेरा तो हो गया. ये जस्ट अंडरस्टैंड कि ये लैंग्वेज की लिमिटेशन है. दो लोग सेम वर्ड यूज कर रहे हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग बहुत अलग अलग हैं. Not in denial does not mean acceptance, although majority of people will conclude कि now I accept कि ये ऐसा हो गया है. वो acceptance नहीं है. ग्रीफ के एंगल से जिस acceptance की बात की जा रही है, जो 5th स्टेज पे acceptance की बात की जा रही है, वो फर्स्ट स्टेज के डिनाइल को एक्सेप्ट करने के इक्विवेलेंट नहीं है. तो जब वो इंसान डिनाइल स्टेज से बाहर आता है तो फिर वो अटकता है एंगर और बार्गेनिंग की स्टेज में. बहुत दिन तक ये स्टेज चलती है. तो जब आप एंगर और बार्गेनिंग की स्टेज में अटके होते हो ना, तो यहाँ पे देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आपको रोज लाइट जलाने की जरूरत पड़ रही है, रोज फॉरगिविंग करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि यू आर कंटिन्यूअसली स्टक इन द साइकिल ऑफ एंगर एंड बार्गेनिंग. ओनली व्हेन यू गो पास्ट दैट स्टेज, तो फिर आती है 4th स्टेज डिप्रेशन की. तो होता क्या है कि हम अपने आप को ना बचाते हैं उस स्टेज में जाने से. तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ कैन नॉट बी कंप्लीटेड अंटिल यू गो थ्रू देम. सो जो अनामिका आपसे बात कर रही थी एंड व्हेन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं ये 2 ऑप्शन दे रही हूँ, जो फर्स्ट ऑप्शन उसने दिया कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हूँ एंड ऑल, एंड देन यू सेड कि थर्ड ऑप्शन मैं ये दूंगा एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन, जिस तरह से आप बता रहे हो, जिस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन कि आप अपने आप को उस स्टेज में जाने से रोक रहे हो. एंड अंडरस्टैंड कि जब तक रोक के रखोगे ये स्टेज कंप्लीट नहीं होगी, ग्रीफ कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसको बाईपास किया ही नहीं जा. अगर आपको ये लग रहा है कि इससे मैं इसके दरवाजे पे आके रुक जाऊं और इसमें से ना जाऊं एंड देन आई कंक्लूड कि मेरा ग्रीफ कंप्लीट हो गया, तो ये सिर्फ अपने आप को फूल बनाने का ही रास्ता रहेगा, क्योंकि यू कैनॉट फूल योर ओन साइकोलॉजी.
आप बात करके दूसरे किसी को बता सकते हो, बातों में आप किसी को ये बता सकते हो और खुद को भी बता सकते हो, लेकिन वो होता नहीं है। लाइफ कैन नॉट बी बाईपास्ड, लाइफ हैज टू, यू हैव टू गो थ्रू इट। तो वो अभी जो सारी की सारी जो चीजें अटकी है ना, वो एंगर और बार्गेनिंग के स्टेज में आपके लिए अटकी पड़ी है। सेकंड और थर्ड स्टेज में अभी घूम रहे हो। तो एक चीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में अच्छी तरह से ये एटलीस्ट एक्नॉलेज कर लो कि अभी एक्सेप्टेंस से थोड़ी दूर हो, क्योंकि डिनाइल की एक्सेप्टेंस इज नॉट द एक्सेप्टेंस दैट इज टॉक्ड अबाउट इन द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। उसको कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, have to go through it, and it takes courage. Sometimes we say कि I am not doing it because I have the responsibility of my kids, I have this responsibility. I understand everything. सब लोगों के कोई ना कोई रीजंस रहते हैं और वो वैलिड रीजंस रहते हैं, तो मैं उन रीजंस के बारे में कुछ नहीं कोई कमेंट कर रहा हूं, ना ही मैं उसको गलत या सही बोल रहा हूं। मैं बस इतना बोल रहा हूं कि whatever the reasons are, still the 5 stages will not understand your logic, कि क्योंकि आपके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ग्रीफ आपको बोलेगी अच्छा आपके लिए माफ किया, आपको जरूरत नहीं है इसमें जाने की, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको तो बहुत काम ये पड़ेगा एंड ऑल दैट, तो आपको माफ करते, किसी और को पकड़ता हूं मैं। तो ऐसा नहीं होता है। तो इट हैज यू एवरीबडी हैज टू गो थ्रू दोस 5 स्टेजेस, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। For whatever reason we hold ourselves back, we delay the process, तो वो खिंचता जाता है। I think मेरे केस में तो फिर ये 15 टाइम्स करना पड़ेगा मेरे को। जो आप बोल रहे हो ना वो बिल्कुल 15 नहीं ज्यादा। हमने एक हीलिंग ग्रीफ की ई लर्निंग जर्नी बनाई है। उस हीलिंग ग्रीफ में एक पर्टिकुलर स्टेप है जहां पे हम ये वाली जो एक्सरसाइज आपने बोली है ना कि मैंने लिखा और मैंने 2 बार पढ़ा, वो हम 1 हफ्ते तक करवाते, दिन में 3 बार। जिन लोगों ने ये किया है ना, वो लोगों ने वो प्रोसेस से जब निकलते हो ना, इतना चट जाते हो उस चीज को करते करते कि यू जस्ट लाइक गेट इट कि ये क्या है। ये 1-2 बार से जाने वाली चीज नहीं है। I agree. तो ये ठीक है, ये हाँ, मतलब हम कई बार ये चीजें पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं कि अच्छा चलो 1-2 बार, पर जो डोसेज होती है वो पता नहीं होता ना कि इस दवाई की डोसेज कितनी खानी है, तो 2 बार से कुछ भी नहीं होगा उसमें। और वो हम हाँ, उसमें यही होता है ना कि चलो मैंने अगर अपने आप को समझा लिया, मैं अपने अंदर मैं खुश हूँ, मैंने कर लिया, अपने इमोशंस को भी समझ लिया और दूर बैठ के अपने थॉट्स को भी सीख लिया कि वो क्या बात कर रहे हैं, आई गेट डिस्टेंट एंड ऑल दैट। पर अभी क्या है, फिर जो मेरा लेट्स से मैं किसी एक स्टेज पे हूँ, थर्ड या उस पे, आई डोंट नो, मतलब मेरे किड्स तो आई थिंक दे आर स्टिल ऑन द दे आर स्टक इन द स्टार्टिंग स्टेज। तो जब भी उनको देखता हूँ रोते हुए, तो ऑब्वियसली मेरे को सारी फीलिंग्स जो हैं वो एकदम से दोबारा आती हैं। देन आई अगेन हैव टू फॉरगिव हर। दैट्स व्हाट आई वाज रेफरिंग टू। अगर उस तरह से नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऐसा इशू नहीं होता है, तो वी आर हैप्पी। लाइक 4 दिन 5 दिन नहीं बात हुई, हम लोग बाइकिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मस्ती हो रही है, कोई किसी को कुछ याद नहीं आया, एवरीवन इज हैप्पी। अब बच्चों को जैसे कुछ याद आ गया किसी बात पे, उनको पैनकेक्स खाने हैं और मम्मा नहीं है घर पे, तो पैनकेक्स दीदी बना के देंगी, वो वैसे नहीं बने, एंड देन दे स्टार्ट लाइक कि हाँ यार, मतलब उनके चेहरे पे साफ पता लग जाता है वो दिखना। वो जब मैं वो इमोशन देखता हूँ, तो आई थिंक मैं वापस पटक से मेरे को वो फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाता हूँ। और फिर वो प्रोसेस जो है वो मेरे को करना पड़ता है कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, अपने आप को संभाल, उसके बाद तुमने बच्चों को भी संभालना है, उनको भी लेके चलना इस तरफ। तो आई थिंक तो ये चीजें जब हम जानते हैं ना, जब ये चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होती है तो लोग अटक जाते हैं। जब मालूम है कि इससे छुटकारा है ही नहीं, this is what I am giving you and everybody else this awareness कि इससे छुटकारा नहीं है। इसका मतलब कि इसको कर लो, बैठ के आराम से, खत्म कर लो इसको, इससे भागो मत, इस वेट मत करो कि पैनकेक्स का इशू आएगा तब ये ट्रिगर होगा, तब ये ऐसे होगा। जब तक नहीं हो रहा है तो मस्ती चल रही है। डू नॉट ओवरलुक इट, जस्ट गेट थ्रू इट।
आपने वो लिंक शेयर कर देना प्लीज, मैं सर्च कर रहा हूँ पोर्टल में, मेरे को मिल नहीं रहा वो ग्रीफ वाला जो आप कह रहे हो ना, ई लर्निंग हाँ प्रोसेस। हाँ, सो हमारी अनामिफाई साइट पे जाओगे तो ई लर्निंग जर्नीज में हीलिंग ग्रीफ करके एक ई लर्निंग जर्नी है। ठीक है, वो ई लर्निंग जर्नी के ही जो लाइब्रेरी है उसी के ही कलेक्शन में इट इज देयर। So it is अगर designed मैं in या this way only that you complete those 5 stages. और ये जो इस स्टेज में जो डिप्रेशन आता है, इस स्टेज का जो डिप्रेशन होता है वो नॉर्मल डिप्रेशन की तरह नहीं होता है। तो इसमें हम डिप्रेशन बोलते हैं, इस स्टेज का नाम डिप्रेशन दिया गया है, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बाय क्लिनिकल डिप्रेशन। इट्स नॉट क्लिनिकल डिप्रेशन, it is like anybody, we all go through depression. So depression is only an emotion की a feeling of sadness, a feeling of down feeling होती है, जब हमें helpless hopeless feel होता है, वो हर किसी को होता है। कुछ भी हो सकता है, जॉब पे कुछ हो गया, जॉब चली गई या मैनेजर ने डांट दिया, घर में झगड़ा हो गया, किसी के साथ हो गया, तो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एवरीबडी गोज थ्रू। सो दैट इज द डिप्रेशन दैट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। लेकिन होता क्या है, ग्रीफ के केस में विच इज ये स्टेज पे अगर इंसान आके अटक जाता है और इसको प्रोसेस नहीं करता है तो इसके क्लिनिकल डिप्रेशन में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दैट इज वेयर इट बिकम्स अ लिटिल बिट ट्रिकी एंड डेंजरस व्हेन ये होना तो है ही, ये व्हाट मैसेज आई एम गिविंग यू ऑल ऑफ यू इज ये होना ही है, इट इज बाउंड टू हैपन। अब आप डर के फेस कर लो या फिर करेज के साथ इसको फेस करके खत्म करो कि ओके लेट इट कम, आई विल फेस इट। ये होना तो है, ये तो बिना हुए करमा पॉसिबल ये नहीं होगा। हाँ जी, ये कितनी बड़ी जर्नी होती है, मतलब से यू नो यू आर 20 रिकवरिंग साल फ्रॉम भी लग दिस फॉर सकते हैं लॉन्ग। किसी को, 20 साल लग सकते हैं, पूरी लाइफ लग सकती है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट, इफ यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, इट कैन लास्ट फॉर लाइफ टाइम। तो अगर हम एक प्रॉपर जर्नी करते हैं, जैसे आपका ई लर्निंग कोर्स या कुछ है, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हील? ई लर्निंग जर्नीज जो हैं वो हम एक सर्टन थॉट से बनाते हैं। ये जो चीजें होती हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि उसमें, आई थिंक हीलिंग ग्रीफ जो है वो 21 डेज की जर्नी है। अब हम उसमें रेकमेंड यही करते हैं कि आप कोई स्टेप है तो आप वो स्टेप तब तक करो जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये स्टेप अब मेरे लिए कंप्लीट हो गया है। सो इट इज नॉट ये कोई ना ट्रेनिंग या कोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको हमने 21 डेज में डिवाइड किया है इन द सेंस कि हम ये चाहते हैं कि आप पहले ये स्टेप करो, फिर ये स्टेप करो, फिर ये स्टेप करो, तो हमारे हिसाब से ये स्टेप करने में इतना टाइम, बट दैट डजंट मीन कि आपको उतना ही लगे, आपको ज्यादा भी लग सकता है। वी ऑलवेज रेकमेंड कि अगर 21 डेज की जर्नी है तो उसको 21 डेज तो मिनिमम करो ही। ऐसा नहीं है कि एक नॉवल की तरह आज ही सारा मैं 2 दिन में ही मेरे को वीकेंड ही मिला है तो मैं वीकेंड में ही पूरा रगड़ के उसको खत्म कर दूं। दैट्स नॉट हाउ ई लर्निंग जर्नीज वर्क। तो अगर हमने 21 डेज की बनाई है तो इसका मतलब मिनिमम 21 डेज। अगर आपको उसमें 25 दिन लग रहे हैं, 30 दिन लग रहे हैं, 40 दिन लग रहे हैं, इट्स टोटली फाइन, बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव शुड बी कि मैं इस स्टेप को तब तक रिपीट करता रहूं जब तक ये स्टेप मुझे अब लग नहीं रहा है कि हाँ नाउ आई शुड मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। तो दैट विल डिपेंड ऑन यू, दैट आई कैन नॉट टेल यू कि आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक गाइडेड जर्नी में ये रहता है कि एटलीस्ट आपको पता है कि आप कैसे बढ़ रहे हो आगे, कहाँ बढ़ रहे हो और क्या है। इसमें अगर आपको 21 दिन लग रहे हैं या 42 डेज भी लग रहे हैं तो भी एटलीस्ट इट्स फाइनाइट। बट जब हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ अटके, किन स्टेजेस में अटके, इट्स इनफाइनाइट। पीपल विल गो ऑन एंड ऑन इन दीज लूप्स फॉर 10 years, 15, 20 years, 30 years, 40 years, मतलब में कोई नंबर ही नहीं है। राइट उसके एंड कंपैरिजन में 21 डेज, 30 डेज, 40 डेज तो कुछ भी नहीं है उसके कंपैरिजन में। exactly. And could it be the reason for patterns repeating in your life as well? Absolutely, absolutely, Yeah. absolutely. And right, और अगर हम एक प्रॉपर वो मतलब अगर
आफ्टर अ ब्रोकन रिलेशनशिप, आपको क्या लगता है? आई अंडरस्टैंड कि ये हर एक का पर्सनल होगा, बट जनरली रिकमेंडेड या कुछ कि कितना टाइम देना चाहिए बिफोर प्लानिंग फॉर फ्यूचर और मूविंग ऑन इनटू समथिंग न्यू? See, again, time is not the healer. First of all, I don't believe in this thing कि time is the best healer जो लोग बोलते हैं. Time heals nothing. अगर टाइम से हीलिंग हो जाती ना, तो अगर आपको डॉक्टर बोलेगा कि आपको कैंसर हो गया और आप जाके बस बैठ जाओ घर पे, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी. टाइम डजंट हील एनीथिंग. यू हैव टू टेक सम एक्शंस. हाँ, अगर आप इलाज करवा रहे हो और फिर बोल रहे हो टाइम विल बी द बेस्ट हीलर, आई गेट दैट. इलाज ही नहीं करा रहे हो, सिर्फ बीमारी को जान के बैठ गए और बोल रहे हो टाइम विल बी द हीलर, तो नथिंग विल हील. तो बस बैठने से क्या होता है कि एक ब्रेक मिल सकता है कि पॉसिबली यू कम आउट ऑफ वन टॉक्सिक रिलेशनशिप. अब आप में हिम्मत नहीं हो रही है कि दूसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाने की, तो आपने एक ब्रेक ले लिया. 6 महीने साल भर तक आप भूल गए, आपने अपने आप को काम में बिजी कर लिया, इधर उधर चीजों में बिजी कर लिया. आप अब उन चीजों आपने डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को. अब आपको लगा अच्छा अब 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, अब आई शुड गो इन द नेक्स्ट रिलेशनशिप. अब तो 2 साल हो गए उस बात को. नथिंग विल चेंज. 2 साल के बाद सेम थिंग्स आर गोइंग टू रीसरफेस, क्योंकि आपने कुछ किया थोड़ी है उसके बारे में. ऑल यू हैव डन इज जस्ट आंख बंद करके बैठे थे 2 साल तक, ये सोच रहे थे कि टाइम से चीजें अपने आप हील हो जाएंगी. टाइम विद टाइम दोज पीपल हु क्रिएटेड दोज इश्यूज इन योर लाइफ, दे आर गॉन. आप अब उनके टच में नहीं हो, वो आपके टच में नहीं है, वो आपको कुछ करने के लिए नहीं आ रहे, आप कुछ नहीं, वो चले गए हैं. लेकिन जो चीजें आपके अंदर भरी थी, जिनको वो ट्रिगर कर रहे थे, वो तो अभी भी भरी पड़ी है. अब कोई नया इंसान आ जाएगा उसको ट्रिगर करने के लिए. डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होगा कि 2 साल के बाद आप और ज्यादा डाउन फील करोगे कि अब ये फिर से मेरे साथ हो रहा है, फिर से ये चीज हो रही है. ये चीज और इंटेंसिफाइड वे में अभी सामने आई कि मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मेरे को ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, ये हो रहा है एंड ऑल दैट. सो बिना अपने ऊपर काम किए कोई चीज, time doesn't heal anything. You heal yourself and then time will be time उसमें जाएगा. हाँ, then with time I can say yes. एक बार आपने अपनी healing process शुरू किया है, तो then you allow yourself some time. You allow 3 months, you allow 6 months, work on yourself, then it's fine. But just 3 months या 6 months या 1 साल 2 साल के लिए बस बैठ जाओ, अपने आप को बंद कर लो, या लोगों से बात मत करो, या रिलेशनशिप में मत जाओ, या ये मत करो और ये सोचो कि अभी सब ठीक हो गया, अब आई एम रेडी फॉर सेकेंड इनिंग्स, तो ऐसा नहीं होता है. या मेक सेंस टोटली. सर मैं एक लिंक शेयर किया मैंने चैट में. इज दिस द वन और नहीं तो आपने कोई और दे देना, मेरे को मिल नहीं रहा है. देखता हूँ. हाँ, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ. व्हाट इज अ हीलिंग जर्नी. I guess नहीं ये Mohit तो is ऑडियो checking in the app. तो हमारा ऐप अलग है और वेबसाइट अलग है. आप जाओ www.amnamify.com पे. Mohit, I'll share it in the group later. Yeah. हाँ. तो for you, Namita, there is a set of healing journey that is there. अगर आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो you can check that and then you will know ki. Sure, sir. Can that be shared on the group or Yeah. maybe It will be shared on the group. Okay. Yeah, we will share that on the group. Correct. Yeah. That was हाँ, a और great discussion. ग्रीफ का जो पॉइंट है ना, वो मैं एक बार हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि ग्रीफ एक ऐसा इमोशन है जिसको ना हमने सिर्फ डेथ के एंगल से ही समझा है, तो इसीलिए ये ओवरलुक हो जाता है. ये जो पॉइंट है, काफी सारे लोगों के लिए ये चीज ओवरलुक हो जाती है, विच इज ट्रू. डेथ के केस में तो ग्रीफ है ही. इक्वली इम्पोर्टेंट इज व्हेन एनी substantial relationship ends. You have invested yourself, a part of you was invested, an identity of you was invested in it. So एक emotional death है वहां पे. People who have lost job or business who have invested themselves, जहां भी आपने अपने आप को emotionally invest किया है, जहां पे आपकी identity
स्टेक पे थी, एंड देन you lost it, and you lost it, and you feel helpless. जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहित का एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट ही इज सेइंग. वैसे तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बट जस्ट ऑन द कॉल ही इज देयर एंड ही इज टॉकिंग. तो 17 years he's he said he wanted, he was talking to his wife that let's make it happen, let's bridge this up and all that. तो बार्गेनिंग की स्टेज में अभी है वहां पे. तो ये रहता है क्योंकि इन्वेस्ट किया है कुछ, अपने आप को इन्वेस्ट किया है. देयर आर किड्स इन्वॉल्व्ड, खुद के इमोशंस एंड ऑल दोस थिंग्स आर इन्वेस्टेड. तो जब ये जब जा रहा है, व्हेन दिस इज डाइंग, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम उसको जाने देना नहीं चाहते. तो और स्पेशली वो लोग ग्रीफ से ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं जिनका पार्टनर ये डिसीजन लेता है. तो even his wife might be feeling a level of grief herself as well, लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा कंट्रोल है उसमें क्योंकि she is the one who is taking these decisions to go ahead. तो वो क्या होता है कि जैसे वो एक लेवल के कंट्रोल में है, इन द सेंस कि जैसे अगर वो आज चाहे तो सारी सिचुएशन रिकवर हो सकती है, क्योंकि मोहित तो रेडी बैठा है, वो तो चाह ही रहा है कि रिकवर हो जाए. तो अब उसकी वाइफ है जो एक क्या है ना, वो अथॉरिटी की या कंट्रोल की स्टेट में है, जिसके यस और नो पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है. तो वो यस बोलेगी तो मोहित तो रेडी ही है, वो नो बोलेगी तो भी वो तो कंट्रोल में है क्योंकि वो उसी का ही डिसीजन है. तो ऐसे लोगों के ऊपर भी ग्रीफ है, दे आर गोइंग थ्रू ग्रीफ. उतना स्ट्रांग नहीं है. स्ट्रांग होता है वो लोग जो लोग दूसरे एंड पे होते हैं, क्योंकि फॉर देम इट्स एन एक्सीडेंट, फॉर देम दे डोंट वांट दिस, दे आर गोइंग थ्रू इट. सेम वे लाइक समबडी डाइज हु यू लव, तो वो तो जो मर गया वो तो चला गया, लेकिन जो पीछे छूट गए, ग्रीफ तो उन्हीं को ही होता है ना, क्योंकि उनका कोई डिसीजन, इस डिसीजन में उनका कोई हाथ नहीं था कि दिस पर्सन शुड डाई. वेरी सिमिलर एग्जाम्पल की जैसे फैमिली में कोई सिक है, बहुत दिन से सिक है, और मान लो कि वो मशीन पे है, वेंटिलेटर पे है एंड ऑल दैट, लाइफ सपोर्ट पे है, और डॉक्टर बता रहा है कि बेस्ट है कि वी स्विच ऑफ द लाइफ सपोर्ट एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फैमिली विल फील कि मतलब उनको मिस होगा, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीफ नहीं होगा क्योंकि वो दे आर मेकिंग दैट डिसीजन टू लेट दिस पर्सन गो. अचानक नहीं हो रहा है, और उनके पास एक कंट्रोल है, उनके पास एक डिसीजन मेकिंग है कि दे आर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये करना पड़ेगा, ये लाइफ सपोर्ट पे ये इंसान भी सफर कर रहा है, और दिस इज नॉट द लाइफ वी वुड लाइक देम टू बी ऑन. दे आर इन अ वेजिटेटिव स्टेट एंड ऑल दैट. तो फैमिली मेंबर्स अगर वो डिसीजन ले रहे हैं कि वी लेट दिस पर्सन गो, तो ग्रीफ तो होगा ही एक लेवल का, लेकिन वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा जितना कि अगर वो इंसान अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, या ऐसे बिना एकदम हेल्दी इंसान था और वो चला जाए, तो जो ग्रीफ फैमिली को होगा वो डिफरेंट होगा. सो दिस इज द केस जब एक पार्टनर दूसरे एंड पे होता है, जब वो तो चाह रहा होता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये ऐसा ना हो, बट दूसरा पार्टनर रेडी नहीं है, तो एक लेवल ऑफ हेल्पलेसनेस आती है. तो वो लेवल ऑफ हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की वजह से ग्रीफ की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है. उसमें गुस्सा ज्यादा होता है, उसमें एंगर, बार्गेनिंग ज्यादा होती है कि व्हाई मी, व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड ऑल दैट. मैं तो नहीं चाह रहा था, मैंने तो इतना इन्वेस्ट किया इसमें एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे अटकना बहुत ज्यादा हो जाता है कि ये पॉसिबल है कि इंसान उसमें अटक के रह जाए. तो ग्रीफ को सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एलिमेंट को चेक करना कि आर यू गोइंग थ्रू ग्रीफ एंड व्हाट स्टेज यू फील दैट यू आर करेंटली स्टक इन. और इसका एक थंब रूल है कि आपको जो भी स्टेज लग रही है ना, आप पढ़ लो इसको, जो भी आपको लगता है कि 5 स्टेजेस जो हैं, आप उनके बारे में स्टडी कर लो, देख लो.
लेकिन आपकी जो भी सेल्फ एनालिसिस रहेगी ना उसकी, कि मेरे को लगता है कि मैं इस स्टेज में हूं, तो समझ लेना आप उसके एक स्टेज पहले हो, क्योंकि हम हमेशा एक स्टेज एक्स्ट्रा ही जज करते हैं अपने आप को, ये कॉमन है। तो इट्स नथिंग दैट यू आर डूइंग, इट्स एनीबडी वुड डू। सो हम थोड़ा ओवर एस्टिमेट ही करते हैं। तो आपको जहां भी लगे ना, जिस भी स्टेज में आपको लग रहा है कि पढ़ने से मुझे लग रहा है कि मैं इस स्टेज में हूं, तो समझ लेना उसके एक स्टेज पहले हो। Yeah, that's it. Yes, over to you, Ashwini. Ashwini, you're on mute. I don't know if you're talking. Yeah, that was a great discussion and great explanation of forgiveness and 5 stages of grief. I hope it helped everybody.